Most respected principal of Vinayak Rao Patil Mahavidyalaya, and one of my very good friends, Dr. Panchal sir, coordinator of this program, Dr. Pardesi, all faculty members of this esteemed college, and all participants from various parts of this country who are participating on this in this online webinar. Friend, today I will be speaking on art of drafting scientific manuscript. Uh, uh, Dr. Pradeshi, can you please share my screen? Who is going to share my screen? Sir, wait for a while. Okay, friend, in between I will start. So, friend, today, as I mentioned earlier, so should I start or should I wait? Start, sir, start. So, friend, in meantime you can share the screen, but I will start my proceeding. Is that okay? Okay, sir. Okay, sir. Okay. So, friend, today I will be sharing my experiences in the area of drafting of scientific manuscript. And you must have seen, or you will be, like the screen will be open to everybody very soon. The title of the today's deliberation would be the art of drafting scientific manuscript. Yes, drafting scientific manuscript is going to be an art, because it need a very dedicated and consistent practice. It's not like if you start today drafting manuscript, maybe like after a couple of years you will be having the total command, and you will be earning those skills, you will be earning that art of drafting manuscript. And therefore this is one of the reason, you must have seen, like most of the research scholar, uh, I would say, like some of the research scholars are really fortunate enough to uh, uh, publish their data in the Journal of International Repute. Of course, we need to understand, like how to identify a good journal and which journal should be referred as Journal of International Repute. That is also questionable. So I'm going to discuss those issues in this presentation, today's presentation as well. So, as I was talking about the art of drafting scientific manuscript. So, as I mentioned earlier, there are very few students, research scholars, or teachers. They are being able to publish their data in good journals, and most of the research scholars, for one or other reason, they are not able to publish their data in good journal. The one of the reason is, like, you're not those who are not able to publish their data in good journal. उसका मेन रीजन ये होगा कि they somehow they could not earn that skill to draft the scientific manuscript. So this skill is very important, and we have to earn, and we need a lot of consistency. We need a very consistent practice, and then only you will be able to draft the manuscript more effective, impactful. And I mean, like, whatever manuscript we will be drafting, it will be like more effective, and you will be able to convince reviewer, so that your manuscript, whenever we'll be submitting, your manuscript will be accepted. So we are going to discuss all those issues and important hurdles rather, and then a milestone. How can we achieve those milestone in drafting of research manuscript? To begin with, I'm going to tell you one story, like how the consistency and how practice is going to play important role. For that purpose, I'm going to tell you one very not recent story, but very common story, I would say. You must have Many of you must be well aware that Sachin Tendulkar was one of the legendary personality in the world of cricket across the globe. And 2007 की ये बात है, there was a one-day cricket match going between Australia and India. And during those days in 2007, there was one player who was emerging in the spin bowling, and that name of that player is rather Broad Hogg. तो क्या हुआ ना, वो उस मैच में ब्रॉड हॉग वाज प्लेइंग एंड ही वाज इमर्जिंग प्लेयर, बट बाय दैट टाइम तेंदुलकर तो वर्ल्ड फेमस बैट्समैन थे, and he was having his own reputation. And during those days everybody was very much excited to get his wicket, right? And that too, अगर क्रिकेट में कोई अगर किसी को क्लीन बोल्ड करता है, तो इसका मतलब जो खुद क्लीन बोल्ड होता है उसके लिए बड़ी शर्म की बात होती है, एंड जो किसी को क्लीन बोल्ड अगर करता है तो उसके लिए बड़ी गर्व की बात होती थी, हुआ करती थी, अभी भी है. So on that particular day, the Broad Hog was very fortunate to get the clean bowled.
आई मीन क्लीन बोल्ड ऑफ सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को ब्रॉड हॉग ने उस मैच में क्लीन बोल्ड कर पाया। सो ही वाज वेरी एक्साइटेड क्योंकि उसको पता था कि सचिन इज वन ऑफ द वेरी फेमस एंड एस्टेब्लिश्ड क्रिकेटर। बैट्समैन में अपनी उनकी रेपुटेशन है, एंड देन आई कुड clean bowled him. So he was very excited. He has celebrated, and somehow Sachin was not happy on that day. He went back to pavilion, and by the end of that play in the evening, since as I mentioned earlier, Broadhawk बड़ा excited था, तो उसको लगा कि भाई चलो सचिन तेंदुलकर को मिलते हैं. So he went to Sachin Tendulkar rooms, and then he said, "You see, Sachin Tendulkar sir, I am really excited today because taking wicket of the person like you is going to be memorable for everybody." And for me, because being a very new player in this world of cricket, I am very excited. So I would like to have your autograph on this ball. जिस बॉल से मैंने आपकी विकेट ली, इस बॉल पे मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए. Do you know what Sachin Tendulkar did? सचिन तेंदुलकर ने उस बॉल पे लिखा कि ये दिन तेरे जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा. क्या लिखा सचिन ने? ये दिन तेरे जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा. You see, like, you know, like he wrote in Hindi. He could not understand, right? Broadhawk being an Australian player, वो कुछ समझ नहीं पाया. लेकिन तेंदुलकर ने डिसाइड किया कि अब इसके बाद में, आज बेटा तू कितना सेलिब्रेट करना है कर, लेकिन जिंदगी में इस लाइफ में तुझे मैं कभी मौका नहीं दूंगा. So he has written that, and right from next moment onwards, क्योंकि ज्यादातर आपको पता होगा कि मैच के बाद में लोग क्रिकेटर्स बियर पीते हैं, they enjoyed. But Sachin Tendulkar could not sleep on that day, and he started, thinking like how the bowling of the broad hog is, and then how to serve, इससे कैसे बचे. And then from next day onward he start practicing. And आपको बताऊं, उसके बाद आपको भी शायद पता होगा कि जब भी ये दो प्लेयर एक दूसरे के सामने आए, whether it could be one-day or टेस्ट मैच और T20, कभी भी तेंदुलकर ने ब्रॉड हॉक को अपनी विकेट नहीं दी. रादर he was dominating. Tendulkar was every day dominating, and he used to have a lot of runs against Broadhawk. ये स्टोरी क्या दर्शाती है? बिकॉज तेंदुलकर उस दिन तो क्लीन बोल्ड हुआ, लेकिन उसके बाद में उसने डिसाइड किया कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू दिस मैन. एंड देन ही स्टार्टेड practicing very rigorously, and then he come out of that problem. The same thing, like whenever we want to have expertise in any particular area, you need to be very consistent, and then you need to practice very, very systematically every day. And likewise today, what I'm going to do, I'm going to tell you how this art of drafting a scientific manuscript can be inculcated, can be earned, or how this can be earned and how this can be learned, right? Now, to begin with, I would like to ask you questions. Like whenever I used to have a face-to-face session, I always ask questions like, what are the gossips about scientific manuscript? What are the gossips means? आपको पता है कि gossips का मतलब क्या होता है? Like ज्यादातर हम उसको नेगेटिव फ्रेम में लेते हैं. Whenever you are doing gossiping, इसका मतलब बहुत बार gossiping नेगेटिविटी भरी होती है gossiping में, and very rarely it has got some positivity. So that is why I intentionally use this word gossip. Like, what are the gossips about the scientific manuscript? अब क्या gossips है, क्या questions रहते हैं हमारे? One of the very, very peculiar gossips. Whenever we are, like discussing this issue, most of us will be discussing this particular question. What is that question? That most of the research scholars are not able to publish their data in Journal of International Repute. Now, what I am asking you, like whether the research scholars are publishing their data in whether you agree with this, whether most of the research scholars, my statement is most of the research scholars are not able to publish their data in Journal of International Repute. अगर फेस टू फेस सेशन रहता तो मैं आपसे रिस्पांस ले सकता था, बट सिंस दिस इज गोइंग टू बी एन ऑनलाइन सेशन, आई वोंट बी एबल टू सी योर फेसेस, and then I don't know like what would be your reaction. And therefore what I did, let us presume that you are in favor of my perception. My perception, what is my perception? My perception is most of the research scholars are not able to publish their data in
Journal of International Review. Now, if you agree with me, then what are the probable reasons? And let me tell you, there are many probable reasons for this. लेकिन उसमें से कुछ reason मैं आपसे share करना पसंद करूँगा. One is like whenever you are not able to publish your data in good journal, it means that you are going to have issues in problem identification. Like whenever you are dropping your manuscript, whenever you are whenever you are dropping your pre-PhD synopsis, at that time you might be having problem of issues in problem identification of problem. Like whatever problem you are going to undertake for your PhD, you might be having many issues. Second is like inadequate literature review, because literature review is going to play a very important role. If you don't do literature review properly, you won't be able to publish your data later on, because literature review will help you to formulate hypothesis. And if you are not doing proper literature review, it means that whatever formulation of hypothesis you must have done it will be, I'm sure it will be improper formulation of hypothesis. There could be fourth reason, like no social relevance, because social relevance is also going to play important role whenever you want to publish your data. Whatever outcome you have, that outcome of your research should be useful for some cross section of society. Like whenever you are submitting like some manuscript, the editor is going to see, reviewer is going to see whether this particular output of this research investigation is going to address or is capable of addressing some social issues in the country or in the globe. Then second, the next could be ambiguity in designing experiment. You might be having lot of problem in the designing of experiment, क्योंकि experiment जब आप design करेंगे, अगर उसमें अगर ambiguity रही तो then again you will be having problem. And even if you have designed the experiment, but if you are not interpreting your data properly, if you are doing inadequate interpretation of data, still you will be having problem. Now, for example, you have identified your manuscript nicely, you have done literature review, you have formulated hypothesis, you have ensured social relevance, and you don't have any ambiguity in designing of experiment, and you have interpreted data as well. But still, like the next issue could be there could be many issues. Like one of the issue could be improper mapping of strength of research scholar with problem. It means that sometimes what happens, जैसे कि आपकी कुछ strength एक है and then आपने problem identify जो है कुछ और किया है. That is why what we need to do when we start your research, to begin with, what you should do, you should do a SWOT analysis of your own, because SWOT analysis is going to be very important, because SWOT analysis will help you to identify your strength, you identify your area of expertise, and then you need to start identifying issues, right? Social issues. And once you have a set of your own expertise and in front of you, the set of your own expertise and set of the social issues in front of you, you need to do the proper mapping, right? If you could not do proper mapping, then also you will not be able to produce quality data. And sometimes what happens, you have done everything nicely, but unfortunately you are poor in presentation, because somehow your presentation is not good, and as a result of that you are not being able to publish your data in good journal. And the last reason, to my opinion, would be the credential of research scholar and research group, because whenever you are submitting your paper, the reviewer as well as editor is going to check your website, and then your research group credential. It may not be, because if you are like first author, and if you are like if it is this could be your first research paper whenever you will be submitting your paper, right? अगर आपका ये पहला पेपर है तो आपके पास कोई क्रेडेंशियल नहीं होगा, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन आपका जो रिसर्च ग्रुप है, आपकी जो रिसर्च एडवाइजर जो है, उनके बहुत सारे पेपर हो सकते हैं, उनका क्रेडेंशियल भी इंपॉर्टेंट है. द रिव्यूअर क्या करेगा, ही इज गोइंग टू डू द क्विक सर्च on the name of all the authors, and he will like to see whether this group has some research like proven research credential or not. ये सब issues जो मैंने probable issues है, अगर इसमें से एक भी issues, because you may be having one or other issues, अगर इसमें से एक दो भी issues आप अगर आपके पास, मतलब if you are having one of those issues, then I'm sure you will not be able to publish your data in good journal. So these are some of the reasons I have mentioned here. Okay, can you please go to next slide, please? Next slide, please. I have already, because I already went ahead, well ahead.
Yes, now it is. You next please. Next slide please. Yes, I was talking about this slide. You can see. No, go back. Earlier slide. इससे पहले की स्लाइड. हाँ, yes. तो no. Next please. Next please. हाँ, बस यहीं पर रहिए, यहीं पर रुकिए. हाँ, you can see I was talking about this particular slide. So I this was my perception. Most of the research scholars are not able to publish their data in Journal of International Review. मैं आपसे पूछ रहा था, तो I presume that you agree with me, and if yes, what are the probable reasons? So these are the probable reasons which I was talking about. Because since now screen will be in front of you, let me read it quickly. Issues in problem identification, inadequate literature review, improper formulation of hypothesis, no social relevance, ambiguity in designing experiment, inadequate interpretation of data, improper mapping of strength of research scholar with problem, poor presentation by research scholar, and credential of research scholar. ये सब मैंने आपको बताया. तो अगर मान लो if you are suffering, if you are having one of those 9 problems, I'm sure you won't be able to publish your data in good journal. So आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप मान लो अच्छा रिसर्च करने के बावजूद भी अगर आप अच्छे जर्नल में अपना डेटा अगर पब्लिश नहीं कर पा रहे तो क्या रीजन हो सकते हैं. सो दिस कुड बी रीजन फॉर दैट. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके. My friend, these are the key aspects of drafting any scientific manuscript. What are those 3 aspects? Novelty, social relevance, / national importance. थर्ड रहेगा credibility और credential of researcher. प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये रिसर्चर होगा. उसका रीजन ये है कि यहाँ पर हम मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर रहे, प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे. नाउ दिस सेम स्लाइड कैन बी यूटिलाइज फॉर अगर आपका रिसर्च प्रोजेक्ट अगर सबमिट कर रहे हो तो वहां पर भी रिव्यूअर ये 3 ही पैरामीटर देखेगा. एंड इफ यू आर सबमिटिंग योर रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट, स्टिल रिव्यूअर इज गोइंग टू सी दीज 3 पैरामीटर्स. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप मैन्युस्क्रिप्ट ड्राफ्ट करोगे तो मैन्युस्क्रिप्ट इज गोइंग टू बी टेस्टेड अगेंस्ट these 3 parameters, right? Now I'm going to discuss one by one. Next slide please. Next slide please. Next slide please. हाँ, okay. Novelty. अब देखिए novelty को कैसे एड्रेस करना है, क्योंकि आप सवाल कर सकते हैं मुझे कि सर novelty को एड्रेस कैसे करना है. You can see, in order to incorporate or in order to inculcate novelty in your paper, research manuscript or scientific manuscript, what you need to do? You need to do a rigorous literature review. Now, what do you mean by rigorous literature review? Rigorous literature review means, like, let us say, if you are started literature review in the month of January 2020. If you started literature review in the month of January 2020, then till December 2019, you need to do the rigorous review of all the literature. Now, question is, which literature should be referred? And for that purpose, now whenever we are talking about literature, you need to know how, what are the important journals. So therefore you need to identify important, the journal of international repute. Therefore the second point is going to be identification of journal of international repute. मतलब जो internationally जो रेप्यूटेड जर्नल है उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. आपको समझना पड़ेगा कि वो जर्नल्स, अच्छे जर्नल किसी को कहा जाता है, राइट? सो खाली इंटरनेशनल जर्नल मतलब अच्छे जर्नल आइडेंटिफाई करके नहीं चलेगा. आपको आगे चल के ये भी देखना पड़ेगा कि आपने जो जर्नल आइडेंटिफाई किए, वेदर दो जर्नल्स आर बिलोंगिंग टू योर ओन फोकस एरिया. So therefore, identification of journal in your focus area is going to play important role. And third one is identification of potential research group across the globe. अब ये 4 इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताऊं, क्योंकि मान लो आपने नॉवेल्टी लिटरेचर रिव्यू करते समय आपको पता ही नहीं कि अच्छे जर्नल क्या है, कौन से हैं, और किसको अच्छा जर्नल कहा जाता है, ये आपको पता ही नहीं. तो व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी रेफरिंग रिसर्च आर्टिकल from the journals which doesn't have any reputation across the globe. मतलब जिसका कोई अपना रेपुटेशन नहीं है, सबस्टैंडर्ड जर्नल है. आपको पता है आजकल बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं कि आप जब मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करोगे तो आपको ये पूछा जाएगा कि भाई आपको ये
मतलब बताया जाएगा कि यू प्लीज सबमिट रिव्यू रिपोर्ट अलॉन्ग विथ मैन्युस्क्रिप्ट, राइट? या तो फिर आप जो है खाली सबमिट करना है पेपर आपका और उसके साथ उसकी फीस पे करनी है, and then within maybe 1 or 2 months your paper is going to be accepted. Review process is going to be very very formality. तो ऐसे जर्नल में आप अगर डेटा पब्लिश करोगे तो वैसे जर्नल का अगर आप लिटरेचर रिव्यू करोगे तो आपको नॉवेल्टी मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि वो तो वही काम रिपीटेड वर्क होगा, आपको नयापन कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंटरनेशनल जर्नल कौन से है आपके जो आपके एरिया के, वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। एंड इफ वंस यू आइडेंटिफाई दैट, देन व्हाट यू नीड टू रिगरस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिगरस? आपको जो है इंटरनेशनल लेवल पर देखना है कि व्हाट द लास्ट पॉइंट मैंने बताया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल रिसर्च ग्रुप अक्रॉस द ग्लोब, ये क्यों है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू लेटर ऑन, बट पहले मैं रिगरस लिटरेचर रिव्यू कैसे किया जाता है वो मैं समझाना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जैसे कि मान लो इंटरनेशनल लेवल की पहले बात कर लेते हैं। You have downloaded, you have identified good international journal of your area, right? Focus area जो भी आपका है उसको भी जर्नल आपने आइडेंटिफाई कर दिया। Then what you did, you have collected, as many paper as you can, very recent as well as old research paper, उसको आपने कैटेगराइज किया। कैटेगराइज करने के बाद यू हैव डन द सिस्टमैटिक एनालिसिस। एनालिसिस में आपको क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस में आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन दोज रिसर्चर हैव डन, what were their objectives, what were their methodologies, what kind of tools they have used for interpretation of data, right? What are their analysis उन्होंने कैसे किया, उनकी कंक्लूजन्स क्या है, एंड एट द एंड आपको उनके इन्वेस्टिगेशन के कुछ इश्यूज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। इट मींस यू नीड टू आइडेंटिफाई सम pitfalls in their investigation. So once you identify pitfalls, this is what you call as identification of gap. एक बार आपने गैप आइडेंटिफाई कर दिया, उसके बाद आप क्या करोगे? आप फिर आपके पास whether then you will be checking your own expertise कि whatever gap you have identified, whether you are capable enough, do you have that kind of credential to address those gaps? Okay, if yes, then you can make a statement that this particular group of people, group of researchers have these and these pitfalls and this is going to be addressed in my investigation, right? Same story you have to repeat at national level. मतलब इंटरनेशनल जो लेवल के जो पेपर्स है उसके पे यही एनालिसिस करना है, ये इसी टाइप का आपको सर्वे करना है एंड नेशनल लेवल का। नाउ आखिरी पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल रिसर्च ग्रुप अक्रॉस द ग्लोब, ये क्यों जरूरी है? मान लो यू आर वेरी जेन्युइन रिसर्च स्कॉलर, यू आर वेरी कैपिटल रिसर्च स्कॉलर, आपने बड़े अच्छे जर्नल क्या है ये भी जान लिया, आपके एरिया की जर्नल क्या है ये भी आपने जान लिया, एंड देन यू हैव डन रिगरस लिटरेचर रिव्यू। लेकिन क्या हुआ? आपने आखिरी स्टेप नहीं किया। क्या है स्टेप? है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल रिसर्च ग्रुप अक्रॉस द ग्लोब। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मान लो क्या हुआ कि एक ऑस्ट्रेलिया में किसी कोने में किसी यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप है जो आपके एरिया में काम करते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं वो काम करते हैं। तो क्या हुआ कि क्योंकि आपको पता होना इसीलिए जरूरी है कि देन यू विल सी लाइक व्हिच जर्नल दे आर यूजिंग फॉर पब्लिकेशन ऑफ देयर डेटा। क्योंकि ये जरूरी क्यों है? अदरवाइज क्या होगा कि मान लो आप अगर उनके रिसर्च पेपर आप रेफर नहीं करोगे क्योंकि वो तो सिमिलर लाइन पे काम कर रहे हैं, तो आप काम करोगे एंड व्हेनेवर यू विल बी सबमिटिंग योर रिसर्च पेपर एंड दे विल बी सबमिटिंग योर रिसर्च पेपर, तो रिव्यूअर के पास जब जाएगा तो रिव्यूअर को पता चलेगा, एडिटर को पता चलेगा कि दिस वर्क हैज ऑलरेडी बीन डन बाय दिस एंड दिस ग्रुप व्हिच आर देयर इन द सिटिंग इन द ऑस्ट्रेलिया। तो आपका काम जब आपने काम किया तब नॉवेल था, जब मैन्युस्क्रिप्ट ड्राफ्ट किया तब नॉवेल था, बट व्हेनेवर इट रीचेस टू द लाइक एडिटर, जर्नल एडिटर, तब तक नॉवेल्टी आपने खो दी है। तो इसीलिए आपको ये देखना है कि दुनिया भर में, इट्स नॉट ओनली विद इन योर ओन कंट्री, पर दुनिया भर में आप जिस एरिया में काम करते हो उस एरिया में कौन कौन काम करते हैं, which platform they are using for publication of data, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म आपको पता होना चाहिए, वो जर्नल्स आपको पता होना चाहिए, so that you will be keeping track on their investigation and then you will not be losing your novelty. So this is very very important. इसमें अगर एक भी स्टेप आप चूक कर दिया आपने कहीं पर भी, then you will be losing your novelty and you will not be able to publish your data. Next slide please. हाँ, सोशल रेलेवेंस। अब सोशल रेलेवेंस को कैसे, सेकंड पैरामीटर क्या है? सोशल रेलेवेंस। सोशल रेलेवेंस को कैसे अपने मैन्युस्क्रिप्ट में हमें इनकलकेट करना है? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यू नीड टू आइडेंटिफाई योर ओन स्ट्रेंथ
और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि आपको अपना खुद का SWOT एनालिसिस होना आपको बहुत जरूरी है। तो आप पहले आपकी स्ट्रेंथ क्या है जानिए, उसकी लिस्ट तैयार कीजिए, एंड देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यूज पर्टेनिंग टू योर ओन एक्सपर्टीज, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी क्या एक्सपर्टीज है, उससे रिलेटेड व्हाट आर द सोशल इश्यूज इन एंड अराउंड यू। मतलब आप जहां पर रहते हो, जिस सिटी में आप रहते हो, उस सिटी के क्या इश्यूज है, जिस जिस रीजन में आप रहते हो उस रीजन के क्या इश्यूज है, जिस कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री के क्या इश्यूज है। अगर आप मान लो आप उस दायरा अगर बढ़ाना चाहो तो यू कैन थिंक ऑफ ग्लोब, लाइक एंटायर ग्लोब। तो आप ऐसा आपका जो दायरा है आप बढ़ाते जाइए, you keep on recording the issues. Once you identify your strength, once you identify the issues, then you need to do the proper mapping of your own expertise and issues. मतलब जो भी है प्रॉपर 1-to-1 मैपिंग करिए, आप देखिए कि आप कैसे मैपिंग करते हो। एंड फॉर एग्जाम्पल आपने आपकी जो 10 स्ट्रेंथ है उसमें से 5 स्ट्रेंथ आपने आइडेंटिफाई किया और उसको मैपिंग किया 5 अलग अलग इश्यूज को। देन यू नीड टू प्रायोरिटाइज दोज। मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी आपकी, मान लो आपको पता चला कि आपके पास इनफ, यू आर इनफ कैपेबल टू एड्रेस 5 सोशल इश्यूज। तो देन आगे बढ़कर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो 5 इश्यूज जो आपने एड्रेस मतलब आइडेंटिफाई किए, जिसके लिए जो रिजॉल्व करने की आपके पास एक्सपर्टीज भी है, उसमें पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी। तो प्रायोरिटाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर सेटिंग प्रायोरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन ट्यूनिंग ऑफ द प्रॉब्लम विद सोशल इश्यूज। मतलब वंस, बिकॉज ब्रॉडर सेंस से पहले आपने क्या किया होगा, ब्रॉडर सेंस पे आपने इश्यूज और स्ट्रेंथ को मैपिंग की होगी, एंड देन यू नीड टू आइडेंटिफाई वेरी वेरी स्पेसिफिक इश्यूज in which is underlying that broader issues, and then you need to get the tune with that. If you could do this, I'm sure whatever research you will, because this exercise you need to do right in the beginning, आगे नहीं, मतलब जब आप काम करना शुरू करोगे उससे पहले ही, जब आप रिसर्च लिटरेचर रिव्यू होने के बाद में सबसे पहले काम जो है आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपने ये किया तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो भी काम करोगे उसमें कुछ ना कुछ तो सोशल इश्यूज रहे, मतलब जो भी आउटकम रहेगा वो रिसर्च का आपके, कुछ ना कुछ तो इश्यूज आप सोशल इश्यूज आप एड्रेस कर पाओगे। नेक्स्ट वन इज, ओके नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, आगे की स्लाइड। हाँ, क्रेडिबिलिटी, क्रेडेंशियल ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। तो ये क्रेडिबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सबसे पहले जब आप पेपर लिखोगे, क्योंकि जब मैन्युस्क्रिप्ट में आपको बताऊंगा तब भी मैं बताऊंगा कि कैसे लिखना है, वो भी आई एम गोइंग टू शो यू दैट एग्जांपल एज वेल। लेकिन पहले आप जानना है कि आपकी क्या क्रेडेंशियल है जो आपने पहले किया। देन प्रीवियस पब्लिश वर्क ऑन द प्रपोज एरिया, मतलब जो पेपर आप पब्लिश कर रहे हो उसमें आपका पहला प्रायर पब्लिश वर्क कुछ है क्या, आपका मतलब आपके रिसर्च का हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपका ये पहला ही रिसर्च पेपर होगा जो आप सबमिट कर रहे हो, तो आपका जो रिसर्च ग्रुप है, आपके जो एडवाइजर है, पीएचडी एडवाइजर, उनका प्रायर रिसर्च क्या है, उनका प्रायर पब्लिश वर्क क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और समहाउ जब आप मैन्युस्क्रिप्ट लिखोगे तो आपको वो रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि पहले आप इस एरिया में काम कर चुके हो। कैसे करना है दैट आई एम गोइंग टू शो यू। एंड मोरओवर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, क्योंकि जब आपका पेपर जब अच्छे जर्नल के रिव्यूअर के पास जाएगा तो व्हाट ही इज गोइंग टू डू, ही इज गोइंग टू लाइक, जब पेपर में आप लिखोगे ना कि दिस एंड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर यू हैव यूटिलाइज फॉर डूइंग योर एक्सपेरिमेंट, राइट। तो जब वो क्रॉस कंफर्म करने के लिए वो रिव्यूअर क्या करेगा, ही इज गोइंग टू सी योर वेबसाइट देखे, आपका सीवी देखेगा, आपके डिपार्टमेंट का पूरा वेबसाइट का डिटेल देखेगा, आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वो देखेगा। देयरफॉर व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कीप ऑन अपडेटिंग योर वेबसाइट आल्सो। नैक ने हमें ये अच्छा सिखा दिया कि हमारी वेबसाइट रेगुलरली अपडेट करते रहने चाहिए, तो हम लोग करते भी है, लेकिन नहीं करोगे तो हियर यू विल गोइंग टू स्ट्रगल। सो देयर आर 3 डिफरेंट मेन पैरामीटर एज आई मेंशन अर्लियर, जैसे कि सबसे पहले क्या था, नॉवेल्टी, सेकंड था सोशल रिलेवेंस, एंड थर्ड था क्रेडिबिलिटी। जब भी आप मैन्युस्क्रिप्ट लिखोगे तब आपको देखना पड़ेगा कि ये तीनों पैरामीटर आपके मैन्युस्क्रिप्ट में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो फिर क्या होगा, जैसे कि अभी शुरुआत कर रहे हैं हम, सो यू विल डूइंग सम एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करोगे, राइट, रिगरसली डूइंग एक्सपेरिमेंट। आप अगर सोशल साइंस के अगर रिसर्चर हो तो यू विल बी कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम फील्ड, एंड देन once you have data with you, you will be having very very rigorous thinking, meticulous thinking, like whatever data you have, how to organize that data, and then you will start drafting your manuscript, right? Next slide please. Okay,
नाउ ये और एक एक्सरसाइज मैं करने के लिए कहूंगा आपको, जब भी आप रिसर्च करना शुरू करोगे उससे पहले एक इम्पोर्टेंट काम आपको करना है, वो है ये वाइवा एनालिसिस। ना वाइवा एनालिसिस क्या है, उससे पहले मैं ये कंसेप्ट आपको बताना चाहूंगा, काइजन। व्हाट इज काइजन? काइजन इज इनफैक्ट वन ऑफ द जापानीज बिजनेस फिलोसफी। क्या है काइजन? काइजन स्टैंड फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। मतलब काइजन स्टैंड फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये काफी सालों पहले जापान ने अपने बिजनेस में लाया था, एंड दे स्टार्टेड अडॉप्टिंग and across the globe, it's not only Japan, now across the globe the Kaizen concept started applying in academic field as well. लेकिन unfortunately हमारे इंडिया में Kaizen concept जो है academics में नहीं आया है। क्या है काइजन कंसेप्ट? जैसे कि इंडस्ट्री में एक्सेप्ट किया, तो इंडस्ट्री में क्या हो रहा है आजकल, मान लो आप अगर किसी भी इंडस्ट्री में काम करते होंगे तो आजकल तो इंडस्ट्री में काइजन कंपटीशन भी होती है। तो काइजन मतलब क्या है? लेट अस से आप एक मशीन के ऑपरेटर हो, किसी मशीन पे आप काम कर रहे हो, एंड यू आर प्रोड्यूसिंग 100 कंपोनेंट, 100 मे बी डिवाइसेस ऑन वन मशीन इन अ डे, राइट? एक दिन में आप 100 डिवाइसेस आप निकाल रहे हो। तो आपके जो बॉस है आपको बताएंगे कि भाई ठीक है, इस साल आपने every day you are producing 100 devices और 100 component, मुझे इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए। किस टाइप के? आइदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट क्या होगा कि भाई आप अगर 100 निकाल रहे हो तो नेक्स्ट ईयर मुझे किसी भी हालत में 100 के 150 होने चाहिए। आप देखिए कि आपको क्या करना है। विद इन सेम रॉ मटेरियल, okay, within same raw material, within same stipulated time, I would like to have 150 devices, right? You do this Kaizen, you do whatever continuous improvement you want to do. This is what we call as quantitative, Kaizen, quantitative improvement. क्वालिटेटिव ये होगा कि डिवाइसेस तो 100 लेंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सम क्वालिटेटिव पैरामीटर्स आप जैसे कि मान लो कुछ पैरामीटर है, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो आपको बताया जाएगा कि चलो भाई ये कॉम्प्रोमाइज अभी नेक्स्ट ईयर नहीं चलेगा, नाउ यू हैव टू कम अप विद दिस पर्टिकुलर लेवल। सो मुझे नंबर तो वही रहेंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी, मुझे मेरे जो डिवाइसेस है उसकी क्वालिटी बढ़नी चाहिए किसी भी हालत में। आप अगर नहीं करोगे तो यू विल बी थ्रोन अवे फ्रॉम द इंडस्ट्री। आजकल दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग in most of the industries, whether you are operator or whether you are high level managerial, having high level managerial post, everybody has to adopt Kaizen. Everybody has to show some sort of improvement in their day to day routine, right? Now don't you think that the same concept should be adopted in academics as well? Yes, we need to have the same concept, we need to adopt same concept in academics as well, but unfortunately it is not happening. बट मैं रिसर्च में इसीलिए जरूरी है कि अगर आपको आपका डेटा अगर अच्छे जर्नल में पब्लिश करना है तो खुद को वाइवा एनालिसिस करना है। काइजन करने के लिए हम वाइवा एनालिसिस करना पड़ता है कि सवाल करने पड़ते हैं। व्हाट आर दोस क्वेश्चंस? व्हाट करंट एंड प्रीवियस स्टडीज हैव बीन डन ऑन द इश्यूज टू बी स्टडीड। मतलब जो आप प्रॉब्लम, जब आप रिसर्च पेपर का डेटा आप जो तैयार करोगे ना, तब जो भी प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया होगा, वेदर प्रीवियस स्टडीज हैव बीन कैरिड आउट, व्हाट काइंड ऑफ स्टडी हैज बीन कैरिड आउट, मतलब अभी क्या स्टेटस है, पहले उसमें क्या स्टडी की, ये आपको पता होना जरूरी है। देन व्हाट इज द अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑन मैग्नीट्यूड एंड नेचर एंड क्लासेस ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका नेचर क्या है, वो आपको पता होना जरूरी है। What are the present gaps in the knowledge? You need to identify what are the gaps, and then what makes the problem worth studying. आपको ये भी समझना होगा कि आप इसमें क्यों काम करना चाहते हो, मतलब इससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। Why has the problem not been tackled yet? मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जो प्रॉब्लम आपने इन्वेस्टिगेट मतलब अंडरटेक करना चाहते हो वो शायद अभी तक किसने ना किया हो, और शायद आप बड़े एक्साइटेड होंगे कि भाई ये तो काम अभी तक किसने किया ही नहीं, इसलिए I am going to be the only first person in the world who is going to work on this area. You might be excited, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम अभी तक किसी ने टैकल क्यों नहीं किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम में कुछ होगा ही नहीं, या तो उसमें सॉल्यूशन कुछ आता ही नहीं होगा। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि why this problem has not been tackled by anybody till this point of time, and then what do you intend to do to fill the gaps or solve the problem. So whatever gaps you have identified, what you want to do to bridge the gap, what you want to do to resolve the problem, this is what you call as वाइवा एनालिसिस। ये अगर आप पहले करोगे तो आई एम श्योर, काम करने के पहले अगर ये वाइवा एनालिसिस आप करोगे तो आई एम श्योर योर डेटा इज गोइंग टू बी वंडरफुल एंड यू विल बी एबल टू पब्लिश योर डेटा इन गुड जर्नल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो मैं आपको कुछ यूजफुल रिसोर्स करना चाहूंगा। जब भी आप मैनुस्क्रिप्ट ड्राफ्ट करना चाहोगे तो यू कैन यूज दिस रिसोर्सेज
for style and grammar, because grammatical, if whenever you are drafting manuscript in English, most of the time, like many author are having problem of drafting the manuscript in English. So for that purpose, you can use those resources to adapt the styles and grammar. Now there are some books on scientific writing also, like you can, whatever I'm telling now, how to write, what should be our approach. Okay, for that purpose you can refer these some documents, some literature, so that you will learn those skills of drafting manuscript. Next please. नेक्स्ट प्लीज. ओके, नाउ ये बैकग्राउंड थोड़ा मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि जब मोटिवेशन क्या होगा, जो भी मतलब पूरी दुनिया में जो भी रिसर्च स्कॉलर पेपर पब्लिश करते हैं तो उसका मोटिवेशन क्या रहता है. ये सर्वे है, ये रेफरेंस है ये सर्वे का. दिस इज द रेफरेंस फ्रॉम दिस पेपर. आई टुक दिस डेटा. डिसिमिनेशन मतलब जो नॉलेज आपके पास आया है उसको डिसिमिनेट करने के लिए 50 मतलब आउट ऑफ 100 54% रिसर्च स्कॉलर जो है डेटा पब्लिश डिसिमिनेट करने के लिए करते हैं. करियर प्रोस्पेक्ट 20%, मतलब आगे मुझे प्रमोशन चाहिए या जॉब मिलना चाहिए, इसीलिए 20% लोग हैं जो उस पॉइंट को सामने रखते हुए डेटा पब्लिश करते हैं. इम्प्रूव फंडिंग, मतलब अभी फंडिंग मिलने के लिए, मतलब मेरे पास अभी तो फंडिंग है लेकिन आई वांट टू हैव मोर फंडिंग, बिगर फंडिंग, उसके लिए 13% लोग हैं जो उसके लिए डेटा पब्लिश करते हैं. ईगो शांत करने के लिए. ईगो मतलब क्या है ना, एक मुझे पेपर तो मेरे पास बहुत है लेकिन आई वांट टू बी लाइक द फर्स्ट पर्सन, like I want to have that kind of reputation in the society. वो मतलब उनको कोई डिसेमिनेशन का कोई रोल नहीं होता, करियर प्रोस्पेक्ट का कोई लेना देना नहीं, फंडिंग का कोई लेना देना नहीं, लेकिन जस्ट चाहिए क्रेडिट के लिए. वैसे 9% लोग हैं. पेटेंट प्रोटेक्शन के लिए 2% है कि जैसा कि पेटेंट किसी ने किसको मतलब पहले उन्होंने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट उन्होंने फाइल किया है, ओके, एंड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी पेपर पब्लिश करते हैं. एंड कुछ अदर है, अदर देन दिस देयर आर 2% पीपल. इट मींस व्हाट डज इट मीन? इट मींस डिसेमिनेशन. 54% जो है अपना नॉलेज, अपना जो रिजल्ट है उसको डिसेमिनेट करने के लिए पेपर पब्लिश करने वाले ज्यादातर लोग हैं. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, नाउ ऑथर पब्लिशिंग प्रायोरिटीज. प्रायोरिटीज क्या है? सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होती है मतलब ऑथर की? क्वालिटी एंड स्पीड. सबसे पहले क्वालिटी. द टॉप प्रायोरिटी ऑफ एनी रिसर्च स्कॉलर शुड बी रेफरिंग स्पीड. मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप डेटा सबमिट करना चाहोगे तो पहले देखिए कि उसका रेफरिंग कितना फास्ट है, मतलब रिव्यू प्रोसेस. रेफरिंग मींस रिव्यू प्रोसेस कितना फास्ट है. मतलब इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वो जो पब्लिश पेपर है, वो पब्लिश पेपर अगर डाउनलोड करोगे उस जर्नल का, तो आपको पता चलेगा कि डेट ऑफ सबमिशन, डेट ऑफ रिवीजन एंड डेट ऑफ फाइनल एक्सेप्टेंस. ये डेट से आपको पता चला कि रिव्यू कितने फास्ट होता है. वो देखकर आप पता कर सकते हैं कि ये जर्नल कितना फास्ट है. देन रेफरिंग स्टैंडर्ड. कुछ आजकल कुछ ऐसे जर्नल है कि वहां पर जो रिव्यू करते हैं उनके भी नाम, जैसे फ्रंटियर, ये फ्रंटियर नाम की एक एजेंसी है, वर्ल्ड वाइड फेमस है. दे आर वन ऑफ द वेरी रेप्यूटेड स्कोपस इंडेक्स, उनके वेब ऑफ साइंस स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स है. वो क्या करते हैं कि अपने एडिटर, जो जर्नल एडिटर है, जो हैंडलिंग एडिटर है, उसको एसोसिएट एडिटर बोलते हैं. एसोसिएट एडिटर एंड जिन लोगों ने रिव्यू किया उनके भी नाम, उनका एफिलिएशन मैन्युस्क्रिप्ट पे देते, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरिंग, मतलब कौन आपके पेपर रिव्यू कर रहा है. एंड जर्नल रेपुटेशन तो मैं आपको बताऊंगा कि रेपुटेशन कैसे जाना जाता है. एंड आप ये भी दे सकते हैं कि वो एडिटर कौन है, एडिटोरियल बोर्ड कौन है, फिजिकल क्वालिटी एंड पब्लिकेशन सर्विसेज उनकी कैसी है. खैर आजकल तो फिजिकल क्वालिटी और पब्लिकेशन सर्विस की ज्यादा आपको फिकर करने की जरूरत नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउअडेज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हाँ, तो मैं जो पहले स्लाइड की जो बताया ना रेपुटेशन, तो रेपुटेशन के लिए आपको समझना होगा कि रेपुटेशन किसको, मतलब कौन से जर्नल को, जैसे पहले भी मैंने बताया 3 पैरामीटर जो बताया, उसमें मैंने बताया कि यू नीड टू आइडेंटिफाई द जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट. तो जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट क्या होते हैं, इसलिए मैं आपको सबसे पहले इम्पैक्ट फैक्टर समझाना चाहूंगा. अब इम्पैक्ट फैक्टर का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, इट इज A/B. अगर 2020 का अगर इम्पैक्ट फैक्टर किसी को निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? A/B. व्हाट इज B? डिनोमिनेटर क्या है? द टोटल नंबर ऑफ साइटेबल आइटम्स पब्लिश बाय दैट जर्नल इन 2018 और 19. मतलब पिछले 2 साल में जितने भी आर्टिकल्स उस जर्नल में पब्लिश किया, दैट गोज इनटू द डिनोमिनेटर. एंड व्हाट इज न्यूमरेटर? न्यूमरेटर इज नंबर ऑफ टाइम्स
article published in 2018 and 19 were cited by the इंडेक्स जर्नल। मतलब उनको साइटेशन कितने मिले, मतलब 18-19 में जो आर्टिकल पब्लिश किए, जैसे कि मान लो 200 आर्टिकल है, 200 में से कितने आर्टिकल को साइटेशन मिले और कितने साइटेशन मिले, that is going to be in numerator, right? And you can see if there are 288 articles or if there are 200 articles and if all articles got one citation at a time, at least minimum one citation, the numerator will be 200, denominator will be 200, your impact factor will be 1, राइट। आप देखिए अभी आपका डिनोमिनेटर फिक्स रहेगा लेकिन न्यूमरेटर बढ़ते जाएगा या कम होगा। अगर साइटेशन ज्यादा है तो न्यूमरेटर बढ़ेगा, इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ेगा, साइटेशन कम है तो इम्पैक्ट फैक्टर न्यूमरेटर कम होगा और आपका इम्पैक्ट फैक्टर कम होगा। इसका मतलब ये है कि जिस जर्नल आर्टिकल को ज्यादा साइटेशन, लेकिन साइटेशन कहाँ है, इंडेक्स जर्नल में, इसलिए इंडेक्स जर्नल क्या है ये भी समझना पड़ेगा आपको, मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट। हाँ, एच इंडेक्स अभी आजकल जो है मतलब जब भी आपका पेपर जब जाएगा ना तो वो आपका वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, अगर आप अच्छे जर्नल में अगर भेजना चाहते हो स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस, तो वो देखेंगे कि आपका वेब ऑफ साइंस स्कोपस का एच इंडेक्स क्या है। एच इंडेक्स क्या दर्शाता है, यू कैन सी एच इंडेक्स इज एन इंडेक्स दैट अटेम्प्ट टू मेजर बोथ प्रोडक्टिविटी एंड इम्पैक्ट ऑफ द पब्लिश वर्क। मतलब आपका जो पब्लिश वर्क है उसकी प्रोडक्टिविटी एंड इम्पैक्ट दर्शाता है। तो क्या जैसे क्या होगा, आजकल नंबर नहीं देखा जाएगा, जैसे कि उदाहरण फॉर एग्जांपल आपके पास 100 पेपर्स है, पास 100 पेपर्स, नंबर कितना है 100, लेकिन आपका एच इंडेक्स क्या है, अगर एच इंडेक्स आपका 5 है, 100 नंबर ऑफ पेपर आपने पब्लिश किया, आपका एच इंडेक्स 5 है, इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ 100 ओनली 5 आर्टिकल्स गॉट मैक्सिमम 5 साइटेशन। मतलब 100 में से खाली 5 आर्टिकल ऐसे हैं जिनको ज्यादा से ज्यादा 5 साइटेशन मिले, कम से कम 5 साइटेशन मिले। आप सोचिए, मतलब आप अगर 100 अगर नंबर है तो आपका एच इंडेक्स 5 है, इसका मतलब यू आर वेरी पुअर। इसलिए ध्यान में रखिए कि आपका 100 के पास अगर पेपर है तो आपका एच इंडेक्स कम से कम 20 से 25 होना चाहिए, मिनिमम 20 to 25 if you are having around 100 paper. If you are having less than that, it means that your productivity or impact is not good. And therefore nowadays जब आप पेपर पब्लिश करते हो, सबमिट करते हो, तो रिव्यूअर एंड एडिटर आपके एच इंडेक्स, स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस के एच इंडेक्स क्या है ये भी देखेगा, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये लिस्ट ऑफ डेटा एकेडमिक डेटाबेसेस है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को, जैसे कि आई डोंट नो इन दिस ऑडियंस कोई सोशल साइंस के कुछ लोग हैं क्या, अगर सोशल साइंस के अगर आप हो, आप देखिए, क्योंकि बहुत बार सोशल साइंस के लोग कहते हैं कि भाई हमारे जर्नल जो है स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में है ही नहीं, लेकिन लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आप देखिए पहला, सबसे पहला रो दिखे, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स, इसमें जो है क्या है, ये दिस इज फ्रॉम वेब ऑफ साइंस, राइट। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स कहाँ से है, वेब ऑफ साइंस। ये है मल्टीडिसिप्लिनरी, सॉरी ये आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के लिए, दिस इज स्पेसिफिकली आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के लिए। इंडियन साइटेशन इंडेक्स भी ये मल्टीडिसिप्लिनरी इंडियन साइटेशन इंडेक्स, अगर मान लो कम से कम आईसीआई में तो डेटा पब्लिश होना चाहिए। साइंस साइटेशन इंडेक्स ये साइंस के लिए है। स्कोपस मल्टीडिसिप्लिनरी, इसमें साइंस है, सोशल साइंस है, ह्यूमैनिटीज है, सब कुछ है। ये अगेन है सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, दिस इज ओनली फॉर सोशल साइंसेस, ये भी वेब ऑफ साइंस डील करता है। एंड स्प्रिंगर भी मल्टीडिसिप्लिनरी है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जितने भी टीचर्स है, वेदर यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, साइंस और व्हाटएवर, you know, like you are going to have a wonderful journal, good international journal good journal of international repute। आपको ये इंडेक्स, these are the इंडेक्स जर्नल, वो जो मैंने पहले बताया ना कि जो आपके इम्पैक्ट फैक्टर निकलते समय जो साइटेशन मिले हैं, किस जर्नल में साइटेशन मिले हैं, वो अगर इंडेक्स जर्नल, ये दिस इज व्हाट यू कॉल एज इंडेक्स जर्नल, राइट। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। हाँ, अभी मैं आपको स्कोपस के बारे में बताऊंगा थोड़ा, क्या स्कोपस क्या है। देखिए, स्कोपस इज एल्सेवियर एब्स्ट्रैक्ट साइटेशन डेटाबेस लॉन्च इन 2004। आप देखिए, ये मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे मेरे पास स्लाइड है। तो स्कोपस नियरली पब्लिश, ये नंबर देखिए, स्कोपस बुक सीरीज भी पब्लिश करता है, जर्नल भी पब्लिश करता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज इंटरडिसिप्लिनरी। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज।
Next slide, please. बीच में आपने ठीक है, वेब ऑफ साइंस को हटा दिया आपने बीच में, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे ही स्कोपस जैसा है वैसे ही वेब ऑफ साइंस है, दैट इज आल्सो इंटरडिसिप्लिनरी। नाउअडेज द एनालिटिक्स क्लेरिवाइट इज गोइंग टू लुक आफ्टर द वेब ऑफ साइंस, तो वो भी आपको देखना है। रिसर्च गेट में इसलिए यहाँ पर रखा है कि बहुत बार हम मिस इंटरप्रेट करते हैं। आप लास्ट का लाइन देखिए, RG score should not be mistaken for academic reputation indicator, क्योंकि आजकल मैं बताऊं कि आपका academic reputation अच्छा भी हो, लेकिन if you are not very interactive on research gate, अगर research gate पे आप अगर interactive नहीं हो तो आपका RG score अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपका रेपुटेशन भले ही बहुत ज्यादा अच्छा ना हो, लेकिन आप अगर इंटरेक्टिव हो तो डेफिनेटली आपका RG स्कोर अच्छा रहेगा। Across the globe now, nobody is considering our research gate as an academic reputation indicator, right? तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसके लिए आपको अगर RG स्कोर ज्यादा चाहिए तो आपको इंटरेक्टिव होना पड़ा सोशल मीडिया पे, आपको मतलब रिसर्च गेट पे इन पर्टिकुलर, मतलब आपको सवाल आएंगे, उसके कुछ रिस्पॉन्सेज आपको देने हैं। इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, योर स्कोर इज नॉट गोइंग टू बी इंक्रीज। नेक्स्ट प्लीज। गूगल स्कॉलर है, जैसे कि मान लो आपके पास सोशल साइंस के मेरे जो फ्रेंड होंगे, मान लो उनका स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में अगर कुछ नहीं आता होगा तो एटलीस्ट दे शुड ओपन अकाउंट इन गूगल स्कॉलर एंड दे शुड पब्लिश डेटा इन एनी ऑनलाइन जर्नल एटलीस्ट, सो दैट गूगल स्कॉलर एटलीस्ट आपका गूगल स्कॉलर में साइटेशन है मतलब H-index हो। क्योंकि आप अगर कंपेयर करोगे अपने आप को गूगल स्कॉलर का, अगर आप नंबर लोगे साइटेशंस एंड H-index, तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। आप अगर स्कोपस में जाएंगे तो वो नंबर आपको कम दिखाई देंगे, आप अगर वेब ऑफ साइंस में जाओगे तो उससे और भी कम दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या है? द मोस्ट स्टैंडर्ड डेटाबेस इज गोइंग टू बी स्कोपस, गोइंग टू बी वेब ऑफ साइंस, उससे देन थोड़ा सा नीचे है स्कोपस एंड गूगल स्कॉलर बहुत नीचे। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर आपको स्कोपस, और इसलिए आप देखिए NIRF देखिए या NAAC देखिए, they are particularly NIRF, they are not going to look into the Google Scholar, they will be looking at only Scopus and Web of Science publications। the quantity और quality जो NIRF में देखी जाती है, that is only Scopus and Web of Science। next please। हाँ, अभी जर्नल जो रेपुटेशन की मैं बात कर रहा था, आपको मैंने बहुत कुछ बताया, लेकिन आपको कम से कम ये स्लाइड आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें 4 पैरामीटर है। जब भी आप जर्नल किसी को आइडेंटिफाई करना चाहिए तो आप ये 4 पैरामीटर देखना कभी भी ना भूलना। साइट स्कोर, जैसे मैंने बताया, इम्पैक्ट फैक्टर कितने 2 साल के साइटेशन का हिसाब किताब रखता है, लेकिन साइट स्कोर जो है 3 साल का हिसाब किताब रखता है। मतलब ये देखिए, अगर 2020 का साइट स्कोर चाहिए, 2017, 18 और 19 या 3 साल में जितने भी साइटेशन मिले हैं उस जर्नल के आर्टिकल को, एंड टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल वुड बी डिनोमिनेटर, फार्मूला इज गोइंग टू बी द सेम। सो 3 साल के साइटेशंस यहाँ पर देखे जाएंगे साइट स्कोर लेने के लिए। इट मींस दैट दिस इज बेटर देन इम्पैक्ट फैक्टर। देन नेक्स्ट पैरामीटर होगा उसका 5 साल का एवरेज इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। हो सकता है आपका, जैसे कि मान लो अभी करंट इम्पैक्ट फैक्टर आपका अच्छा होगा, लेकिन पिछले 5 साल का आपका कैसा है। That is why if you really want to see the journal of international repute, you need to see the 5-year impact factor। next है HJR क्या है? Scimago जर्नल रैंक। अब इस Scimago HJR इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है कि इट्स नॉट ओनली किसने, मतलब इट्स नॉट ओनली द क्वांटिटी, क्वालिटी आल्सो गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ। क्वालिटी का मतलब क्या है कि किस जर्नल ने आपके आर्टिकल को रेफर किया है, किस जर्नल ने आपके आर्टिकल को साइट किया है। सो दैट इज आई मीन the citation number as well as which journal, the name of the journal, उनका रेपुटेशन क्या है, वो जर्नल भी यहाँ पर काउंट किए जाते हैं। इसलिए HJR इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SNIP जो है, SNIP इज सोर्स नॉर्मलाइज इम्पैक्ट फैक्टर पर रिसोर्स पेपर, लाइक पर पेपर। इसका मतलब क्या है? बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे जर्नल है उसमें से कुछ पेपर को तो अच्छा साइटेशन मिलता है, लेकिन कुछ पेपर्स को अच्छे साइटेशन मिलते नहीं। This is going to be normalized. This parameter is going to normalize the impact factor of that journal। मतलब यहाँ पर एवरेज लिया जाएगा, मतलब हर पेपर का भी, each and every paper citation is going to be considered for calculating SNP factor of any journal। And therefore, my friend, whenever you are selecting journal of international repute,
for literature review, you need to see is 5 parameters. साइड स्कोर क्या है, फायर इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, एचआर क्या है, स्नीफ फैक्टर क्या है. ये 4 फैक्टर देखकर आप जर्नल को चूज कर सकते हो. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हाँ, अभी प्रायोरिटीज क्या होगी, सब मतलब जब भी हमारे क्या होनी चाहिए रीडर की प्रायोरिटी, क्वालिटी आर्टिकल्स, ईज ऑफ एक्सेस मतलब एक्सेस आसान होना चाहिए, डिलीवरी रैपिड होनी चाहिए, उसका जो फॉर्मेट है वो कन्वीनियंट होना चाहिए, लिंकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन उनकी कैसे सिस्टमैटिक होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि मान लो आपको फिगर सबमिट करनी है, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है, लिंकेजेस प्रॉपर होनी चाहिए, एंड कॉस्ट आइदर लो और नो कॉस्ट मतलब ये तो फ्री ऑफ चार्ज होना चाहिए या अगर है तो बहुत कम होना चाहिए, एंड दैट जर्नल should provide up to date information. So that the priorities of the reader or the researcher who is going to publish the data. Next please. Next please. Okay, इथिकल इश्यूज क्या हो गए, मतलब ये सब बातें आप मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के पहले आपको देखना पड़ेगा. डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगा, जैसे कि मान लो एक रिसर्च काम करने के लिए मान लो 3-4 ऑर्गेनाइजेशन जुड़े अगर होंगे, राइट, तो उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ है क्या. जैसे कि मान लो आपको किसी ने फंडिंग किया है, डीआरडीओ फॉर एग्जांपल, डीआरडीओ इज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन. तो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जब आपको पैसा देते हैं ना, तो आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर आएंगे कि भाई आप जो आपके पास जो भी रिसर्च आउटपुट होगा आप इंडिपेंडेंटली पब्लिश नहीं कर पाओगे. पब्लिश करना भी है तो उसके प्लेटफॉर्म उन्होंने डिसाइड किए होते हैं कि भाई आपको यहीं पर डेटा पब्लिश करना है, इस जर्नल में पब्लिश नहीं करना है. तो ये डिस्क्लोजर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. देयरफॉर यू नीड टू थिंक ऑफ दैट दोस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइट इन द बिगिनिंग. एक्नॉलेजमेंट ऑफ फंडिंग रिसोर्सेज, जो भी फंडिंग आपको मिलती है उसके एक्नॉलेजमेंट का आपको सोचना है. इमेज मैनिपुलेशन गाइडलाइंस मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो उसके जो जर्नल है जहां पर आपको सबमिट करना है उसके गाइडलाइंस क्या है इमेज मैनिपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑनलाइन सबमिशन, क्योंकि आजकल ज्यादातर जर्नल की सबमिशन जो ऑनलाइन होता है तो उसका सप्लीमेंटल मटेरियल क्या है, डेटाबेसेस क्या है, वीडियोस को सबमिट करने हैं क्या, that you need to understand right in the beginning. And health related issues, like you are working on health related issues, the submission of clinical trials, center registry, मतलब आपको ये सबमिट कर सकते हैं क्या, आपको अलाउ है क्या, आपका जो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड जो है उसका अप्रूवल आपको लगता है क्या, अगर है तो आपको सबमिट करने के पहले वो सब आपका अप्रूवल होना चाहिए, तभी आप पब्लिश डेटा पब्लिश कर सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. अब स्टाइल एंड लैंग्वेज, जब स्टाइल एंड लैंग्वेज की बात है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वो जर्नल की वेबसाइट पे जाना है. एंड क्योंकि पहले तो आपने अभी आपने कम से कम ये तो समझ लिया कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट क्या होता है. मान लो आपने वो समझ लिया, आप वो जर्नल की वेबसाइट पे जाएंगे एंड यू विल बी गोइंग थ्रू द ऑथर्स गाइड, राइट, एंड केयरफुली देखिए कि उनका स्टाइल या लैंग्वेज क्या है. लाइक फॉर एग्जाम्पल some of the authors write their paper with specific journal in mind. मतलब कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ मतलब रिसर्च स्कॉलर कि पहले से ही वो क्या करते हैं, जर्नल को सामने रखते हुए वो मैन्युस्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी गुड प्रैक्टिस. ज्यादातर रिसर्च स्कॉलर क्या करते हैं, पहले अपना मैन्युस्क्रिप्ट पूरा करते हैं, एंड वंस द मैन्युस्क्रिप्ट इज रिटन लेटर ऑन दे विल डिसाइड लाइक व्हिच जर्नल टू बी यूज फॉर द पब्लिकेशन. बाद में उसको वो फाइन ट्यूनिंग करते हैं. तो वो करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप अगर पहले से किसी एक जर्नल को टारगेट करोगे एंड मान लो उस जर्नल से डेटा अगर आप वापस आता है तो देन आइदर यू विल बी हैविंग लेस डेटा, बिकॉज कुछ ऐसी जर्नल है कि जहां पर बहुत लिमिटेड आपको मतलब डेटा सबमिट करना होता है, तो यू विल नॉट बी एबल टू पब्लिश दैट मैन्युस्क्रिप्ट इन अदर जर्नल. देयरफॉर बेटर ये है कि आपके पास जितना भी डेटा है उसको आप सिस्टमैटिकली अरेंज करिए, मैन्युस्क्रिप्ट लिखिए, कैसे लिखना मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, एंड देन see the guidelines respective journal and then accordingly you can fine tune them. Okay, next slide please. हाँ, अब स्टाइल एंड इंग्लिश आगे बढ़ता हूँ मैं, क्योंकि बहुत बार मैंने ये देखा कि because even in India also our native language is not English, right? Our first the mother tongue is not English. So better way हमें क्या करना चाहिए, there are online assistant are also available. You can take help of online, I mean like there are many websites where you type the manuscript, send them, they will make the English corrections and they will charge you, right?
If not, what you can do, you can identify your colleague, the person who is having who is having better understanding of English language, or he or she could be from your English department, he or she could be co-author in your paper, right? तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उनको आप जो भी मैन्युस्क्रिप्ट लिखोगे आप उनको बताइए, उनसे ग्रामेटिकल एंड इंग्लिश करेक्शन कर लीजिए, एंड सी और ही विल बी योर को-ऑथर। तो ये अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको जब आप पेपर सबमिट करोगे तो मिनिमम आपको, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, आपके डेटा अच्छा है लेकिन प्रेजेंटेशन बिकॉज ऑफ लैंग्वेज यू आर नॉट एबल टू पब्लिश योर प्रेजेंट योर डेटा सिस्टमेटिकली, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वो पुअर प्रेजेंटेशन की वजह से भी आपका डेटा रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आई वुड एडवाइज यू to take help of the person who is having better understanding of English language. Next please. Article submission. आर्टिकल सबमिशन आजकल जो है, यू हैव टू सेलेक्ट जर्नल केयरफुली। सबसे पहले आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखिए, कि नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप जर्नल सेलेक्ट करते हो, उसका जो एरिया फोकस एरिया है उसमें आपका जो थीम जो है बैठता ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले देखना चाहिए कि उनका फोकस एरिया क्या है, उससे मैचिंग हमारा रिसर्च थीम है क्या। तो यू हैव टू सेलेक्ट जर्नल वेरी केयरफुली, रीड एम एंड स्कोप, क्योंकि सेलेक्ट करने के बाद आप उसका एम एंड स्कोप देखिए। थिंक अबाउट योर टारगेट ऑडियंस एंड लेवल ऑफ योर वर्क। आप देखिए कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, क्योंकि if you don't identify your target audience properly, you will not be able to publish your data. And then you need to see like, do you have realistic chance being accepted? मतलब आपको खुद को सवाल करना है कि मेरा जो डेटा है, इस जो टारगेट ऑडियंस मेरा है, क्या इस जर्नल का ऑडियंस वो है क्या मेरा डेटा इस जर्नल में पब्लिश हो सकता है क्या, एक्सेप्ट हो सकता है क्या। यू नीड टू थिंक दैट वेरी सीरियसली, नहीं तो रैंडमली ज्यादातर रिसर्च स्कॉलर क्या करते हैं, व्हाई दे आर गेटिंग डिस्करेज, बिकॉज ये बिल्कुल इसके बारे में सोचते नहीं है, एंड देन गलतियां करते हैं राइट इन द बिगिनिंग, एंड दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड लाइक एनीथिंग आफ्टर गेटिंग देयर पेपर रिजेक्टेड। इसलिए पेपर आप अगर चाहते हो कि आपका पेपर रिजेक्ट ना हो तो केयरफुली आप सोचिए, एंड देन फॉलो द गाइडलाइंस इन नोट्स फॉर द ऑथर एंड इंक्लूड एवरीथिंग दे आस्क। मतलब आप देखिए, केयरफुली देखिए कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली यू प्लीज फॉलो द गाइडलाइंस एंड डू द थिंग्स। एन आर्टिकल शुड नॉट बी सबमिटेड टू मोर देन वन जर्नल एट ए टाइम। मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट को क्या लगता है कि भाई मैं इस जर्नल को सबमिट करूंगा, इट विल टेक मे बी कपल ऑफ मंथ्स और मे बी मोर देन दैट, एंड देन आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स आई विल कम टू नो दैट माय पेपर इज एक्सेप्टेड। तो मैं करता हूं एट ए टाइम जर्नल को सबमिट करता हूं, जहां पर लगे, जहां पर मेरा लक चले। नो, यू शुड नॉट, दिस इज अनइथिकल रात, यू शुड नॉट सबमिट, बिकॉज क्योंकि जब भी आप पेपर सबमिट करोगे तो वहां पर आपको पूछा जाएगा कि वेदर यू हैव सबमिटेड दिस मैन्युस्क्रिप्ट एल्सवेयर। आपको वहां पर बताना पड़ेगा कि आपने कहीं पर सबमिट नहीं किया, इसलिए यू शुड नॉट लाई, एंड देयरफॉर यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पॉइंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अभी ऑनलाइन सबमिशन के बारे में बताना चाहूंगा मैं कि मेनी पब्लिशर नाउ ऑफर, मतलब ज्यादातर आर्टिकल आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन प्रोसेस करते हैं। आर्टिकल इज सबमिटेड ऑनलाइन एंड ऑल द रिव्यू प्रोसेस आल्सो हैपेंस ऑनलाइन। मतलब आपको जो है मतलब आपको डेटा ऑनलाइन सबमिट करना है और प्रोसेस भी ऑनलाइन होती है, उसका रिव्यू प्रोसेस ऑनलाइन है। आपको एवरीथिंग like you are going to get the through your email or through the portal, because you are going to have your own login. You can log into the journal portal, you will have your own login, you can see whether what is happening। पहले एडिटर के पास रहेगा, उसके बाद रिव्यूअर के पास जाएगा, फिर कमेंट आएंगे, कमेंट रिव्यूअर एडिटर रिव्यू करेगा, वो कमेंट पेस्ट करेगा, आपको बताएगा कि वेदर योर पेपर इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, और एक्सेप्टेड है तो माइनर रिवीजन है, मेजर रिवीजन है। इससे क्या होता है ना, like the speed editorial process का speed बढ़ता है, and this is going to be very very important for authors, like I mean जैसे इंडिया के लिए पहले ऐसा हुआ करता था कि हमें आउट ऑफ मतलब इंटरनेशनल जर्नल को अगर पेपर सबमिट करना है तो हमें बाय पोस्ट भेजना पड़ता था, लेकिन बट नाउ दैट हैज बीन रूल्ड आउट। नाउ ऑनलाइन प्रोसेस है, इसलिए इकोनॉमिक कोई इश्यू नहीं है। विदाउट एनी, यू नीड नॉट पे सिंगल पेनी, right, and you will be able to publish your data. Next please. हाँ, अभी की पैरामीटर्स क्या होंगे जब जर्नल आप देखोगे तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको, इम्पैक्ट फैक्टर होगा। ये मेजर फैक्टर क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर देखोगे, उसका रेपुटेशन, एक्सेस टू द टारगेट ऑडियंस, मतलब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसका टारगेट ऑडियंस क्या है, ओवरऑल एडिटोरियल स्टैंडर्ड क्या है, पब्लिकेशन स्पीड क्या है,
इंटरनेशनल कवरेज कितना है, ओपन एक्सेस है क्या, ये सब पैरामीटर है जो आपको देखने पड़ेंगे। ये आप देखोगे, these are going to be key parameter for selecting journals, right? Apart from reputation के अलावा आपको ये पैरामीटर्स है। मार्जिनल फैक्टर्स क्या होंगे? एक्सपीरियंस एज ए रेफरी, मतलब उसमें रेफरी का कितना एक्सपीरियंस है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्वालिटी एंड कलर इंस्टीट्यूशन के कैसे, मतलब आप पेपर पब्लिश जो पेपर है वो डाउनलोड करके आप दे सकते हो, एंड उनका सर्विसिंग कैसा है, मतलब हाउ क्विक दे आर। नाउ दिस कैन बी by going through their published paper, you will be able to understand these processes and it will help you to enhance the speed of your publication. Next please. हाँ, ऑथर प्रायोरिटीज क्या हो गए जर्नल के, जैसे कि क्वालिटी मैंने बताया, कलेक्शन मतलब उनका कलेक्शन कितना ब्रॉड है, स्पेशलाइजेशन है क्या, उनका प्रीवियस पब्लिकेशंस कैसे है, एंड स्पीड कैसा है। सो दीज आर सम ऑफ द पैरामीटर व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, सो दिस इज गोइंग टू बी, ये अभी बैकग्राउंड तैयार हुआ, राइट? अभी मैं एक्चुअल मैन्युस्क्रिप्ट की तरफ बढ़ते हम, राइट? अभी मैन्युस्क्रिप्ट का टेम्पलेट कैसा होना चाहिए? सबसे पहले टाइटल होना चाहिए, देन ऑथर एप्लीकेशन होने चाहिए, abstract, introduction, materials and methods, results, tables, discussion, conclusion, acknowledgement and references. This should be the order of the titles, right, in the manuscript, right? And that is why I said this is the manuscript template. Let us see one that. Next please. अब टाइटल देखिए कैसे होना चाहिए। टाइटल नीड टू बी अटेंशन ग्रैबिंग। कहीं भी आप देखिए जो टाइटल है उससे वो जो रिव्यूअर है उसको एक अलग चेतना मिलनी चाहिए, नहीं? उसका अटेंशन हमें मतलब somehow he should, मतलब वो जो नींद से जैसे आदमी उठता है ना वैसे दिखना चाहिए कि yes, this is something very new, right? It should be around 150 character long, क्योंकि बहुत बार ऐसा है कि very long, your title should not be too long or it should not be too short as well, right? एग्जाम्पल मैंने कुछ दिए, एक एग्जाम्पल है जैसे एडिक्वेट टाइटल कैसे होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ सीईओ फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। यू कैन सी व्हाट इज द टाइटल, दिस इज वेरी एडिक्वेट टाइटल, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ सीईओ फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब इसी टाइटल को हम कैसे गड़बड़ी कर सकते, देखिए, डिटरमाइनिंग द मैकेनिज्म ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ सीईओ एज पर प्रिवेलिंग गवर्नमेंटल रेगुलेशन and political influence in actual appointment of CEO and other authorities of the institution and its impact on overall functioning of the institution। मतलब देखिए ये टाइटल है कितना मतलब अटेंशन ग्रैबिंग टाइटल है, एंड ये ऐसा है कि वो जो रिव्यूअर वो ढूंढते रह जाएगा कि आपने क्या किया है, राइट? ये सारा साइंस रिलेटेड टाइटल मैंने लिखा है, आप देखिए जो दोज हु आर फ्रॉम साइंस डिसिप्लिन, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर use and the development of new ischemic heart disease in non-cardiac chest pain patient। अब देखिए ये है बड़ा वेरी कंसाइज टाइटल, एंड इसी को कैसा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस ऑप्शंस ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज एंड एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इस्केमिक हार्ट डिसीज इन नॉन कार्डियक चेस्ट पेन पेशेंट इन एज ग्रुप ऑफ 50 to 60। अब देखिए मतलब ये दोनों टाइटल देखिए जो ब्लू कलर से है कितना कंसाइज है, कितना अटेंशन ग्रैबिंग है, और रेड कलर में जो है बिल्कुल कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर रिव्यूअर का दिमाग आउट हो जाएगा एंड देन ही विल बी अगेंस्ट योर मैन्युस्क्रिप्ट। इसलिए टाइटल से शुरू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टाइटल बड़ा कंसाइज होना जरूरी है, ज्यादा शॉर्ट भी नहीं, ज्यादा लॉन्ग भी नहीं, एंड अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। टाइटल पेज क्या होगा? टाइटल पेज पे ये होगा, लिस्ट ऑफ ऑथर्स रहेंगे, ऑथर एप्लीकेशन रहेगा, करस्पॉन्डिंग ऑथर रहेंगे, रनिंग टाइटल होगा, ऑब्स्ट्रैक्ट होगा, कीवर्ड्स रहेगा, एंड लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस। तो आपको मैं एक्चुअल जर्नल का पेपर बताऊंगा अभी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए जो मैंने बताया ना, ये दिस इज द टाइटल, ये मेरा खुद का ही पेपर है, दिस इज द टाइटल, दीज आर द ऑथर्स, देयर एप्लीकेशन, और ये देखिए ऑब्स्ट्रैक्ट। अब कुछ जर्नल में 150 वर्ड्स होते हैं, कुछ जर्नल में 100 वर्ड्स होते हैं, कुछ जर्नल में 75 वर्ड्स होते हैं। सो इट डिपेंड्स, राइट? तो डिपेंड्स ऑन आपको, इसलिए जर्नल के जो भी जर्नल है उसके गाइडलाइंस आपको केयरफुली देखने पड़ेंगे कि ऑब्स्ट्रैक्ट भी कितना चाहिए, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी अ टाइटल पेज ऑफ जर्नल। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया ये टाइटल है,
ये ऑथर्स हैं एंड दिस इज एप्लीकेशन। मैंने उसको आपको आपके मतलब फॉर योर नॉलेज आई थॉट लेट मी यू नो मार्क इट स्पेसिफिकली, टाइटल, ऑथर्स एंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये उसी का है, आप आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। एब्स्ट्रैक्ट कैसे होगा? एब्स्ट्रैक्ट देखिए क्या होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दैट? ऑफन 200 to 300 वर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द जर्नल, राइट? ये मतलब ऑन एन एवरेज 200 से 300 मैंने बताया, लेकिन देयर आर मेनी जर्नल दे डोंट अलाउ यू मोर देन 100 वर्ड्स आल्सो, राइट? इट डिपेंड्स। आपने देखा होगा जो मैंने बताया उसकी कितने नंबर लिमिटेड है। मतलब कुछ जर्नल है जो 100 वर्ड्स ही अलाउ करते हैं, बट ऑन एन एवरेज 200 to 300 वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट में आप ले सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखना चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट में 3 बातें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? व्हाट यू हैव डन, हाउ यू हैव डन एंड व्हाट यू हैव अचीव्ड। मतलब आपने क्या किया, कैसे किया और आपको क्या मिला। आपने क्या किया मतलब क्या है? आपके ऑब्जेक्टिव जो थे इन्वेस्टिगेशन से वो आप थोड़ा ब्रीफली आप लिखिए, बिकॉज दिस इज एब्स्ट्रैक्ट, राइट? देन आपने कैसे किया, मेथोडोलॉजी क्या थी वो आप ब्रीफली लिखिए, एंड उसके बाद में आपको क्या मिला दैट यू कैन राइट। क्योंकि आप देखिए कि रिव्यूअर जो भी आपका पेपर रिव्यू करेगा तो एब्स्ट्रैक्ट से उसको पता चलना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मतलब व्हाट यू हैव डन, what was your methodology, mean how you have done and what you have achieved, right? What are the outcome of your investigation? ये सब बातें आपके ऑब्स्ट्रैक्ट में आनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। एंड देन इसमें जैसे कि बहुत सारे एडिशनल है, नॉट हैव एडिशनल इंफॉर्मेशन बियॉन्ड व्हाट इज इन द मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट के बाहर का नहीं होना चाहिए। बहुत सारे हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम है ना, टाइटल हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट होता है, मतलब हमारा जो टाइटल है ना पूरा ऑब्स्ट्रैक्ट हम टाइटल में उतारना चाहते हैं। हमारा जो ऑब्स्ट्रैक्ट है पूरा इंट्रोडक्शन हम ऑब्स्ट्रैक्ट में लाना चाहते हैं, और इंट्रोडक्शन तो पूरा हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पूरा होता है। Unfortunately, truly speaking, as I mentioned, title should be very very precise. It should not be neither short nor too broad. ऑब्स्ट्रैक्ट की जब बात की मैंने, एक पैराग्राफ अराउंड 200 वर्ड्स, उसमें आपने क्या किया, कैसे किया और क्या मिला वो होना चाहिए, और मैन्युस्क्रिप्ट के बाहर का कुछ उसमें होना नहीं चाहिए। कॉमन मिस्टेक क्या है? टू मच बैकग्राउंड और मेथड्स इंफॉर्मेशन। बहुत बार उसका बैकग्राउंड हम ऑब्स्ट्रैक्ट में लिखते, फिगर देते, बहुत लोग फिगर्स भी देते, रेफरेंसेस देते, रेफरेंसेस नहीं होने चाहिए, एब्रिविएशन ऑब्स्ट्रैक्ट में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दीज आर सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स व्हिच पीपल आर डूइंग। आजकल एक नया ट्रेंड आ रहा है ग्राफिकल ऑब्स्ट्रैक्ट, मतलब आप रेगुलर ऑब्स्ट्रैक्ट के बाद भी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है। ऑब्स्ट्रैक्ट में आपने जो भी लिखा है, मतलब आपने क्या किया, कैसे किया और क्या मिला, इसका आप एक फिगर में, एक पर्टिकुलर फिगर में अगर उसको इलिस्ट्रेट कर पाए तो आजकल ज्यादातर जर्नल आपको ये मतलब वर्ड ऑब्स्ट्रैक्ट के साथ साथ ग्राफिकल ऑब्स्ट्रैक्ट भी डिमांड करता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस एज। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए एग्जांपल है स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में क्या है? ऑब्जेक्टिव्स, डिजाइन, स्पेलिंग, सॉरी इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा अभी ये। मतलब क्या है ना, जो भी आपने किया, जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने 3 बातें बताया आपको कि व्हाट वाज योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट वाज योर मेथोडोलॉजी एंड व्हाट वाज योर आउटकम। ये सब आपका आना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं लिखोगे ऑब्जेक्टिव एंड देन लिखना, मेथोडोलॉजी उसके बाद में लिखना एंड देन आउटकम। नो, आपको वो वर्ड नहीं आनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव, ये आपने ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया वो लिखना चाहिए, कैसे किया वो लिखना। मेथोडोलॉजी मतलब वो ये वर्ड मेथोडोलॉजी वर्ड नहीं आना चाहिए, लेकिन आपने मेथोडोलॉजी कैसे, क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की। आउटकम मतलब आउटकम ऑफ द डेटा, आउटकम ऑफ माय इन्वेस्टिगेशन, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, बट व्हाट आर एक्चुअल आउटकम दैट शुड बी रिटन। सो दिस इज स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज स्ट्रक्चर वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। अब ये देखिए ये मेरा ऑब्स्ट्रैक्ट है। आप अगर देखोगे इसमें आप अगर देखोगे तो क्योंकि ये तो अभी पीडीएफ फॉर्मेट आपको शेयर किया गया, अनफॉर्चुनेटली टुडे आई कुड नॉट शेयर माय स्क्रीन ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम, अदरवाइज इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर यू। इसमें आप अगर 3 मार्क अगर देखोगे, आप अगर पढ़ते होंगे तो इसमें बेसिकली 3 बातें लिखी गई। सबसे पहले है कि हम क्या करना चाहते थे, ये यहाँ पर हम कैसे हमने किया और हमने क्या अचीव किया। ये मेरा ही खुद का पेपर है, तो इसमें जैसे कि मैंने बताया ना कि व्हाट यू वांट टू डू, ये इसमें आया।
हाउ वी हैव डन इट, ये इसमें आया, एंड व्हाट वी हैव अचीव ये तीसरे पैराग्राफ में आया। तो ये ऑब्स्ट्रैक्ट में ये आया हुआ है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। अभी अब उसके बाद है इंट्रोडक्शन। Introduction summarizes relevant literature so the reader will understand why you are interested in the question you ask, right? सबसे important मैं बताऊं, introduction में ये तीन जो पार्ट है ना, this is very important. Somehow in the introduction part you should reflect novelty, social relevance and credibility. जो तीन जो पैरामीटर मैंने आपको पहले बताए थे, that should be reflected in your introduction. मतलब आपको दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मैन्युस्क्रिप्ट। इंट्रोडक्शन को बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर लिखते समय इट माइट रिक्वायर कपल ऑफ मंथ्स फॉर ड्राफ्टिंग ओनली इंट्रोडक्शन। मतलब 2-3 महीने आपकी इंट्रोडक्शन ड्राफ्ट करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपको लिटरेचर रिव्यू पूरा देना होता है, नॉवेल्टी क्लेम करनी होती है। अगर आप वो कर नहीं पाए तो आपका पेपर एक्सेप्ट होना बहुत मुश्किल है। साथ साथ आपका सोशल रिलेवेंस भी, आपका जो आउटपुट आपको आया है, इन व्हाट वे दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर द सोसाइटी, ये भी आपको उसमें रिफ्लेक्ट करना होता है। और आपका खुद का क्रेडिबिलिटी भी आपको आपकी इंट्रोडक्शन में ही रिफ्लेक्ट करना होता है। ये तीन पैरामीटर जो है, समहाउ यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बाय ड्राफ्टिंग दिस, क्योंकि आपको ड्राफ्ट करते समय समहाउ अगर आपने ये कर पाए तो डेफिनेटली आपका पेपर एक्सेप्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप अगर देखोगे, क्योंकि आप शायद पढ़ नहीं पाओगे, आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू रीड इट। आप अगर ये 2 पैराग्राफ देखोगे, दिस एंड दिस, ये है ये नॉवेल्टी दर्शाता है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ये बताने की कोशिश की कि बाकी लोगों ने अभी तक क्या किया है और उनके इन्वेस्टिगेशन के पिटफॉल्स क्या है और हम क्या करने वाले हैं। ये 2 पैराग्राफ आप अगर बारकाई से पढ़ोगे, आपको अगर विजिबल होगा, आप अगर पढ़ पा रहे होंगे तो आपको दिखाई देगा कि हमने यहाँ पर रेफर किया है कि बाकी लोगों ने अभी तक इस एरिया में क्या किया है एंड व्हाट वी हैव डन, राइट। मतलब हमने हट के क्या किया, मतलब क्या किया है उन्होंने, and then what were their issues and how we are going to address those issues. It means you will be addressing novelty. आप अगर ये पार्ट अगर देखोगे तो ये है, थोड़ा सा नीचे लेकर जाइए, थोड़ा नीचे ले, नहीं उसी स्लाइड पे आप थोड़ा नीचे, हाँ ये पार्ट मैं बताना चाहता हूँ। ये पार्ट जो है, दिस इज नॉवेल्टी एंड दिस इज सोशल रेलेवेंस। सोशल रेलेवेंस क्या है, ये बताएगा कि ये जो सेंसर है, ये सेंसर क्यों यूजफुल है, मतलब व्हाई, हाउ लाइक इफ वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ सेंसर तो क्या होगा, राइट। इसका मतलब क्या है, यू आर एड्रेसिंग सम सोसाइटल इश्यूज, राइट। सो दिस इज द पैराग्राफ व्हिच विल रिफ्लेक्ट द सोशल रेलेवेंस ऑफ द पेपर। दीज 2 पैराग्राफ रिफ्लेक्ट द नॉवेल्टी। तो मैंने जैसे बताया कि इंट्रोडक्शन में आपको नॉवेल्टी, सोशल रेलेवेंस एंड तीसरा पार्ट क्या है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी। नेक्स्ट स्लाइड पे हो है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये जो है ना, आप अगर देखोगे तो इसमें हमने बताने की कोशिश की कि इस एरिया में हमने ऑलरेडी काम किया। ये 2 पैराग्राफ जो है, इसमें हमने बताया कि इस एरिया में हमने अभी तक क्या काम किया है, राइट। हमारे खुद के पेपर, उसमें हमने साइट नीचे रेफरेंसेस में डाल दिए। तो ये क्या दर्शाता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी इसमें क्या है। तो आपने अभी देखा होगा कि इंट्रोडक्शन में ये 3 बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक यू समहाउ व्हेनेवर यू आर ड्राफ्टिंग योर मैन्युस्क्रिप्ट, इंट्रोडक्शन इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसमें आपको नॉवेल्टी इनकैलकुलेट करनी है, उसमें आपको सोशल रेलेवेंस इनकैलकुलेट करना है और क्रेडिबिलिटी करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर होगा एक्सपेरिमेंटल सेक्शन। एक्सपेरिमेंटल सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल क्या एक्सपेरिमेंट आपने किए, राइट। अगर इफ एट ऑल you are doing experiment if your investigation is based on experiments, right। तो आप बताइए कि आप क्या क्या आपने यूज किया, डिटेल्स ऑफ योर experimentation। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मटेरियल्स एंड मेथड, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपने क्या, इफ यू आर फ्रॉम साइंस डिसिप्लिन तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने क्या क्या मटेरियल्स यूज किए, which methods you have used, what are the sources of that material, right। if you are from social science, तो social science में ये होगा कि आपके, क्योंकि आपका डेटा जो है आपका सर्वे होगा, तो सर्वे में लोकेशन क्या होगा, वो आपने जो सैंपल जो लिए वो कैसे लिए, डेटा कलेक्शन कैसे किए, उसका वेरिएबल्स क्या थे,
वो जो आपने जो सैंपल लिए वो ड्यूरेशन उसके क्या है, इसलिए उसको पीरियड ऑफ रिक्रूटमेंट बताया गया। जो पार्टिसिपेंट है उसमें वो डेटा इसमें जो डेटा सर्वे में उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या था, मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या था, जो केस स्टडीज आप करेंगे उसके कंट्रोल आपके क्या है, आप जो ग्रुप स्टडी करेंगे उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, उसके उसके पार्टिसिपेशन रेट क्या होगा, ये सब पूरा डिटेल्स आप इसमें मटेरियल्स एंड मेथड में। नेक्स्ट प्लीज। देन वेरिएबल्स, जैसे मैंने बताया वेरिएबल्स क्या है, डेटा सोर्स एंड मेजरमेंट, डेटा सोर्स पब्लिक मेजरमेंट, डेटा कलेक्शन, लेबोरेटरी मेथड्स, मतलब आपके डेटा सोर्सेस क्या है, आप अगर मेजर कर रहे होंगे तो मेजरमेंट आपकी टेक्निक्स क्या है, डेटा कलेक्शंस आप कैसे कर रहे हो, लेबोरेटरी की कौन से मेथड्स आप यूज कर रहे हो, आप बायस मतलब डिस्क्राइब एनी एफर्ट्स टू एड्रेस पोटेंशियल सोर्सेस ऑफ बायस, मतलब आप अगर बायस का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो आप डेटा सर्वे कर रहे हो, डेटा सर्वे करते समय आप जो है स्ट्रेटेजीज आप चेंज कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल in one city you are considering data from, you are taking data from slum area, right, and then well-to-do area, like you are collecting data from slum area as well as well-to-do area. Similarly, if you are collecting data from, let us say, academic institution, you are collecting data from rural institution, at the same time you are collecting data from metropolitan institution, so you are going to have some bias, right, you are going to have some deviation. What are those deviation, what are the, what are the रीजन फॉर द डेविएशन, स्टडी साइज क्या है आपकी, जैसे कि मान लो सर्वे आप कर रहे हो, आपका सर्वे औरंगाबाद सिटी से रिलेटेड है क्या, आप उसका ज्यूरिडिक्शन औरंगाबाद सिटी है क्या, मराठवाड़ा रीजन है क्या, महाराष्ट्र रीजन है क्या, या होल इंडिया है, सो दैट साइज यू नीड टू डिफाइन। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, आप देखिए ये क्या दर्शाता है, दिस इज स्टडी साइज। आप देखिए ये स्टेटमेंट जो है कैंसर केसेस, ये पर्टिकुलर एग्जांपल दिया गया, कैंसर केसेस मतलब साइज बताया गया, रिक्रूटमेंट रेट यहाँ पर बताया गया है, डेटा कलेक्शन कैसे गया ये बताया गया, लोकेशन इंफॉर्मेशन, मतलब पहले जो भी मैंने बताया था दैट नीड टू बी रिफ्लेक्टेड इन योर मटेरियल्स एंड मेथड। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। स्टैटिस्टिकल, अगर मान लो आप स्टैटिस्टिकल टूल्स अगर आपने यूज किए तो आपको बताना पड़ेगा कि हाउ वेरिएबल्स वेर हैंडल, उसका आपका एनालिसिस आपने किया, कैसे किया, कंटिन्यूअस किया, कैटेगरिकल या कंटिन्यूअस है, डिस्क्राइब ऑल स्टैटिस्टिकल मेथड्स, आपने जितने भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स आपने यूज किए उसको आप डिस्क्राइब करिए, स्पेसिफिक, अगर कोई स्पेसिफिक स्टडी आपने की तो उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। एंड देन यू कैन सी, यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये वेरिएबल्स के एडजस्टमेंट ऑफ वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल आप कैसे एडजस्ट कर रहे हो इसका यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल, मतलब कौन सा मॉडल आप यूज करते हो वो यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब दैट नीड टू बी रिफ्लेक्टेड इन योर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। नेक्स्ट प्लीज। देन नेक्स्ट पार्ट है रिजल्ट। अब रिजल्ट में ऐसा है कि जो भी आपने अभी तक एक्सपेरिमेंटल है, डेटा है, आपका सर्वे है, मटेरियल्स मेथड है, तो result could be either in in tabular form or it could be in figure form। यार ये भी हो सकता है कि आपका फिगर नहीं है आपके पास, ना तो टेबल है, लेकिन आप डिस्क्राइब कर रहे हो, so that need to be mentioned here। अब सेक्शन शुड इंक्लूड, क्या क्या लिखा है उसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टडी पार्टिसिपेंट, मतलब आपको जितने भी टेबल्स आपके हैं उसके आप एक्सप्लेन करिए, आपको जो नंबर ऑफ मिसिंग डेटा मतलब क्या है, आपके पास ह्यूज डेटा है, आपने कुछ टेबल यहाँ इंक्लूड किया है, लेकिन कुछ टेबल जो है आप इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज जर्नल ने आपको बताया कि आप ज्यादा से ज्यादा 5 टेबल दे सकते हो, लेकिन आपके पास बहुत सारे टेबल है, तो मिसिंग डेटा क्या है, हाउ दैट मिसिंग डेटा इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरप्रिटेशन, वो आपको लिखना है। देन मेन रिजल्ट, आपके जो टेबल्स आपके रहेंगे वो मेन रिजल्ट आपको लिखना है। देन वो एनालिसिस आप कैसे गए, उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया, उसका इफेक्ट कैसा है, उसका इंटरेक्शन कैसे रहेंगे, उसके एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसे, ये पूरा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना हो। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। अब कुछ एग्जांपल होंगे, ये टेबल जैसे कि कुछ टेबल है, इसमें आप देखोगे कि इसमें पैरामीटर्स है, इसके आपको क्या डेटा मिला है, कुछ अलग अलग टेबल होंगे, आप वो टेबल दे सकते हैं, एंड देन you will be explaining those table in your result and discussion session। next please। अब कुछ नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये कुछ एग्जांपल है टेबल्स के, आप आगे जाइए।
आप 2-4 स्लाइड आप कंटिन्यूस जाइए, आप तो मतलब 2-2 सेकंड रुक कर, to after every 2 second you can couple of second you can switch. देखिए टेबल 3, ये टेबल 4, मतलब ऐसे जितने भी टेबल आप दे सकते हो दे सकते हैं, ऐसे कुछ हिस्टोग्राम हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, या तो ग्राफ है जैसे कि ये साइंस का है, ये एपीएससी इमेजेस है, कुछ ग्राफ्स है, राइट, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ, या टेबल एंड फिगर। आप देखिए कैसा है ना, रिजल्ट सेक्शन में कुछ ऐसे जर्नल है जो रिजल्ट एंड डिस्कशन सेक्शन साथ में चाहते हो, राइट। तो आपको क्या करना है, आपका टेबल होगा उसका डिस्कशन होगा, आपकी फिगर होगी उसका डिस्कशन होगा। अगर मान लो आपके रिजल्ट्स अलग है डिस्कशन अलग है, तो रिजल्ट्स में क्या रहेंगे, ओनली टेबल्स रहेंगे या फिगर्स रहेंगे, राइट। एंड इन डिस्कशन यू विल बी एक्सप्लेनिंग दोज इन डिटेल। प्लीज नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अभी डिस्कशन में क्या करोगे आप, जो टेबल है वो टेबल को डिटेल आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, क्योंकि ईच एंड एवरी पैरामीटर आप उसको, मतलब देखिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि टेबल में जितने भी पैरामीटर होंगे सबके सब पैरामीटर आप डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज अदरवाइज इट विल बी टू लेंथी। तो आपको टेबल को समराइज करना पड़ेगा, तो उसमें से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। फॉर ईच एंड एवरी टेबल देयर शुड बी वन कंक्लूजिव रिमार्क। Similarly, for each and every figure there should be some conclusive remark. ये देते समय डिस्कशन में बहुत बार आपको, मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, मतलब बहुत बार आपको अपना डेटा जो है रेफर करना पड़ता, कंपेयर करना पड़ेगा ऑलरेडी पब्लिश डेटा से। तो मेरा एक टेबल है, टेबल जो भी मुझे मिला है, अब मैं क्या कर सकता हूँ टू मतलब रिव्यूअर को कन्विंस करने के लिए मुझे ये बताना पड़ेगा इससे पहले भी इस टाइप का काम हो चुका है, राइट, उसका रेफरेंस आप दे दीजिए, एंड देन आप बता दीजिए कि इधर आपका काम उसी लेवल का है या उससे एक स्टेप आगे है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिस्कशन में, क्योंकि यू नीड टू समहाउ, क्योंकि जो क्लेम आपने इंट्रोडक्शन में किया है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्लेम किया होगा, इंट्रोडक्शन में आपने क्लेम किया होगा कि आपने जो है जो लिटरेचर रिव्यू किया उनके कुछ इश्यूज आइडेंटिफाई किए, इश्यूज आइडेंटिफाई करके आपने आपकी जो एक्सपर्टीज है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्टीज यू मेड वन स्टेटमेंट कि आप जो इश्यूज रिजॉल्व करेंगे, उसका टेक्निकल थोड़ा डिटेल्स बताएंगे कि किस हाउ यू आर गोइंग टू रिजॉल्व दोज इश्यूज, राइट। अभी आपने किया, उसके रिजल्ट्स आप बता रहे हो, तो आपको फिर से रेफर करना पड़ेगा उस पेपर को, वो पेपर को आप रेफर करिए, देखिए उनका फिगर का, आप फिगर नहीं डाल सकते, टेबल नहीं डाल सकते, लेकिन नंबर डाल सकते हो, फिगर का भी कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन डाल सकते हो, एंड देन यू कैन कंपेयर कि आपके रिजल्ट कैसे बेटर है। ये आपको इसमें करना है, इंटरप्रिटेशन में करना है। आप अगर ये नहीं कर पाए तो रिजल्ट आपका डिस्कसिंग सेक्शन जो है कन्विंसिंग नहीं होगा। इसीलिए इंट्रोडक्शन एंड डिस्कशन, ये दो सेक्शंस किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इंट्रोडक्शन में आपने अगर माइनर मिस्टेक कर दी है तो आपको उसको सुधारने का कोई मौका नहीं है, आपका पेपर रिजेक्ट होने की ज्यादा चांसेस है। मान लो आपने इंट्रोडक्शन सही लिखा लेकिन रिजल्ट एंड डिस्कशन में आपने प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं किया, तो भी आप उसको प्रॉपर, मतलब रिव्यूअर को मिस नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट प्लीज। ये वही बात है जो, हाँ, अब लास्ट इसमें रिजल्ट एंड डिस्कशन का पार्ट होगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होगा, दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ योर मैन्युस्क्रिप्ट। क्या होगा इसमें, आपके जो अचीवमेंट्स है, कंक्लूजन में जो ऑब्स्ट्रैक्ट में क्या होगा, ऑब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन में क्या डिफरेंस है। जैसे बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट हम देखते हैं तो क्या करते हैं कि ऑब्स्ट्रैक्ट एज इट इज रिपीट करते कंक्लूजन में, लेकिन नो, कंक्लूजन शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। इसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर लोग लिखते हैं कि वी हैव ऑब्जर्व दिस एंड दिस, वी हैव ऑब्जर्व दिस एंड दिस, वो कंक्लूजन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो आपके रिजल्ट एंड डिस्कशन में आना चाहिए जो आपने ऑब्जर्व किया। यहाँ पर स्पेसिफिकली व्हाट यू हैव अचीव्ड, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो आपने एक सेंसर डेवलप किया है, आपने अगर सेंसर डेवलप किया तो सेंसर्स के, आप कोई भी डिवाइस डेवलप किया तो उसके आउटपुट रिजल्ट्स क्या है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, हाउ यू गॉट इम्प्रूव्ड नंबर्स, राइट। लाइक इन टर्म्स ऑफ सेंसर, जो भी पैरामीटर, क्योंकि मैं रेफर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस मुझे पता नहीं सोशल साइंस के लोग थे, इसलिए जो इम्प्रूव्ड नंबर होंगे उसको रेफर करते हुए आपको बताना है कि हाउ यू कुड इम्प्रूव, हाउ यू कुड you know after tackling, after addressing those issues, how you could improve the device.
डेटा सर्वे करते समय अगर आप बता रहे होंगे कि भाई XYZ रिसर्चर ने ऑलरेडी दिस टाइप का डेटा सर्वे किया है, लेकिन उनके कंक्लूजन इस टाइप के थे, उनके कंक्लूजन में ऐसा कुछ था, लेकिन हमारे कंक्लूजन लाइक इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट, दैट नीड टू बी रिफ्लेक्टेड। मोreover इन कंक्लूजन देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ फ्यूचर डायरेक्शंस, क्योंकि उसमें आप ये डेटा जो है कहां पर यूज करेंगे ये भी थोड़ा प्रोजेक्ट करना चाहिए। एंड पोटेंशियल पब्लिक हेल्थ इम्प्लीकेशन, अगर मान लो अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज मान लो आपका डेटा एड्रेस कर रहा हो, या सोसाइटल कुछ इश्यूज, जैसे मैंने बताया कि सोशल रिलेवेंस आपको इंट्रोडक्शन में बताना है, तो यहाँ पर आप प्रोजेक्ट कर सकते हो कि दिस डेटा इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर एड्रेसिंग दिस एंड दिस इश्यूज ऑफ द सोसाइटी। ये आपको किसी भी हालत में कंक्लूजन में आना चाहिए। प्लीज नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। एंड देन लास्ट इज गोइंग टू बी एक्नॉलेजमेंट। अब एक्नॉलेजमेंट में क्या है, लिस्ट ऑफ फंडिंग सोर्सेज, आपके स्टडी जो जितने भी आप स्टडी के लिए जहां जिन जिन लोगों ने फंडिंग किया है, जो जो इंस्टीट्यूशन से आपको हेल्प मिली है, दैट यू कैन एक्नॉलेज इन द एक्नॉलेजमेंट सेक्शन। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए हमारा एक ऑथर हमारे पेपर का एक्नॉलेजमेंट लिखा, आप देखिए इसमें कि ऑथर्स एक्सप्रेस देयर सिंसियर थैंक्स टू नैनो मिशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट अंडर दिस एंड दिस। मतलब ये काम करने के लिए जो मैन्युस्क्रिप्ट में रेफर, ये काम करने के लिए नैनो मिशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमें मिला था, वो प्रोजेक्ट का रेफरेंस है, हमने उसको एक्नॉलेज किया है। इस टाइप का एक्नॉलेज, जैसे कि मान लो इसमें आपको एक से ज्यादा एजेंसी से पैसा मिला होगा तो आप एक से ज्यादा एजेंसी का नाम लिख सकते हो। आपको मान लो कैरेक्टराइजेशन के लिए किसी यूनिवर्सिटी का हेल्प मिला है, वो यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हो। किसी टीचर, किसी सीनियर प्रोफेसर ने आपको हेल्प किया डेटा इंटरप्रिटेशन में, वो प्रोफेसर का नाम लिख सकते हो। मतलब दोज इंस्टीट्यूशन, दोज इंडिविजुअल हु हेल्प यू टू डू दिस रिसर्च वर्क, so you can acknowledge their help in this acknowledgement section. Next please, next please। रेफरेंस आखिरी होगा, रेफरेंस सेक्शन। अब रेफरेंस सेक्शन में आप देखिए कि हर जर्नल का अपना खुद का स्टाइल होगा, इसलिए आपको मैं रेफरेंस सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि यू नीड टू फॉलो। यूजुअली रेफरेंस जो है कभी कभी अल्फाबेटिकली अरेंज करने के लिए बोलते हैं, या तो द वे इन विच वी आर रेफरिंग इन द लिटरेचर उसके अकॉर्डिंगली सीरियली उसको मतलब ऐड करने के लिए बोलते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द जर्नल गाइडलाइंस। सो रेफरेंस सेक्शन के लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द रेस्पेक्टिव जर्नल सो दैट यू विल बी एबल टू एक्जैक्टली फॉलो सेम थिंग व्हाट द जर्नल इज एक्सपेक्टिंग। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। जनरल रूल क्या है, अभी ये हो गया सब कुछ। जनरल रूल क्या है, स्पेलिंग चेक आप फिर से करना है। डोंट अवॉइड, आई मीन ट्राई टू अवॉइड टाइपोज एंड एरर्स, क्योंकि टाइप राइटिंग आप मतलब टाइपोग्राफिकल मिस्टेक मत करिए, एरर्स मत करिए। यूज करेक्ट एंड स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर। बहुत बार ऐसा है कि नॉमेनक्लेचर जो है हम गलत यूज करते हैं, दैट नीड टू बी वेरी केयरफुल। एब्रिविएशन जो भी है उसको डिफाइन करिए, एक्रोनिम का आप डिफाइन करिए राइट इन द बिगिनिंग। कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जैसा कि एक वर्ड जैसे कार्बन नैनो ट्यूब फॉर एग्जांपल, आप एक बार उसको कार्बन नैनो ट्यूब बोलते हैं, दूसरे बार सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब बोलते हैं, तीसरी बार कुछ और नाम देते हो। तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। जो भी नॉमेनक्लेचर आप यूज कर रहे हो मैन्युस्क्रिप्ट में, यू नीड टू यूज द सेम नॉमेनक्लेचर थ्रू आउट द मैन्युस्क्रिप्ट। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एंड नंबर ऑफ पेजेस जो है वो भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर जर्नल ने बताया है कि 5 पेज, तो यू नीड टू finish your manuscript within 5 page only. अगर आप ये नहीं करोगे तो definitely you will be having trouble. Next slide. Next slide please. After submission, अब देखिए after submission के बाद में आपको क्या करना है। Most journal editor will make initial decision on paper to review or reject. मतलब एडिटर जब एडिटर के पास जाएगा, वो एडिटर सबसे पहले क्या करेगा, वो पेपर को पढ़ेगा एंड देन पढ़ते ही वो डिसीजन लेगा कि पेपर एक्सेप्ट मतलब उसको आगे बढ़ाना है या नहीं। आपको बहुत बार when you submit the paper, maybe within couple of days you will get email that your paper is paper entered into the review process or your paper is rejected. मतलब outrightly एडिटर देखेगा और आपको पेपर रिजेक्ट कर सकता है। आजकल ये 2 टाइप की रिव्यू हो रही है, ब्लाइंड रिव्यूइंग एंड नॉन रिव्यूइंग। आपको पता होगा कि जब भी आप पेपर सबमिट करोगे तो आपको पूछा जाएगा कि आपके पास आप लिस्ट ऑफ रिव्यूअर सबमिट करो। दिस इज व्हाट यू कॉल नॉन रिव्यूइंग। तो जनरली आजकल यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है कि 2 रेफरी होते हैं, लेकिन ज्यादातर आजकल जर्नल 3 रेफरीज मतलब फॉलो मतलब 3 रेफरीज के बाद 5 रिव्यू के लिए जाता है। 3 में से
एक जो है नॉन रिव्यूअर होता है हमारा, मतलब जो लिस्ट हम देते हैं उसमें से ही किसी एक रिव्यूअर के पास जाता है, और 2 कम से कम ब्लाइंड रिव्यूअर होते हैं। वो इसीलिए कभी कभी ऐसा हो सकता है, वो उसका रीजन मैं आपको बताऊं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो ब्लाइंड रिव्यूअर है वो हो सकता है आपके के ना हो, तो इसलिए आपके पेपर को रिजेक्ट करेंगे। तो इसलिए नॉन रिव्यूअर के पास जाना चाहिए कि जो द रिव्यूअर इज गोइंग टू वेरी मच फैमिलियर विद योर रिसर्च। एंड जब वो रिव्यू जब आएगा रिपोर्ट, तब एडिटर देखेगा कि भाई नॉन रिव्यूअर ने क्या कहा है और जो ब्लाइंड ने क्या कहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि ब्लाइंड रिव्यूअर पेपर रिजेक्ट कर देते हैं, नॉन रिव्यूअर विद जस्टिफिकेशन पेपर एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं, तो एडिटर विल फॉलो नॉन रिव्यू। बहुत बार ऐसा होता है कि नॉन रिव्यूअर हमारे जान पहचान का होता है, इसलिए विदाउट एनी, मतलब देयर आर मेनी नंबर ऑफ मिस्टेक, फिर भी वो कहता है कि पेपर एक्सेप्ट होना चाहिए। ये जो ब्लाइंड रिव्यूअर वो नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं, एडिटर विल बी टेकिंग डिसीजन ऑन देयर ओन। तो इसलिए आप रिव्यूअर के लिस्ट सबमिट करोगे तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ऐसे लोगों के नाम दीजिए जो सीरियसली आपका पेपर देखकर सीरियस रिव्यू सबमिट करेंगे। ऐसा नहीं कि ना पेपर अपना दोस्त है बोलकर विदाउट रीडिंग रिव्यू सबमिट करेगा, नो, बिकॉज although non-review process is there, but the editor is always going to take care of non-review report as well as blind review report. नेक्स्ट आगे का स्लाइड लीजिए, ये मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो दिस इज द ओवरऑल रिव्यू प्रोसेस। जब आप पेपर सबमिट करोगे तो पहले तो आपको कंफर्मेशन आएगा कि आपका पेपर मिला है। देन इनिशियली डिसीजन विल बी टेकन बाय एडिटर। आइदर क्या करेगा कि आपका पेपर वो रिव्यू करेगा, और उसको अगर पता चलेगा कि इसमें कोई क्वालिटी नहीं तो स्टेट में वो रिजेक्ट करेगा। अगर मान लो उसको लगता है कि यस इसमें कुछ है, रिव्यूअर इज एडिटर इज गोइंग टू सेंड इट फॉर रिव्यू वो असाइन करेगा। रिव्यूअर के रिपोर्ट आ सकते हैं, रिव्यूअर आने के बाद रिव्यू कंप्लीट होगा। Reviewer, there could be 3 different kind of report, review report. Either they will ask you to revise, they will ask you to accept without modification, or they may ask you to reject it. Reject होता है तो आपका खेल खत्म हुआ, accept होता है तो सीधा वो पब्लिकेशन के लिए जाएगा, सीधा पब्लिशर के पास जाएगा। अगर रिवाइज करने के लिए बोलता है तो फिर ऑथर को नोटिफिकेशन आएगा। अकॉर्डिंगली जो भी गाइडलाइंस होंगे, अकॉर्डिंगली यू हैव टू रिवाइज एंड यू हैव टू सबमिट रिवाइज वर्जन। रिवाइज वर्जन होने के बाद रिवीजन को फिर से रिव्यूअर के पास भेजा जाएगा। रिवीजन इज गोइंग टू बी इवैल्यूएटेड एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट विल बी एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट होने के बाद फिर इट विल सेंड इट टू पब्लिशर फॉर पब्लिकेशन। ऑफकोर्स आपको प्रूफ रीडिंग के लिए उसका गैली प्रूफ आएगा, देन यू कैन मेक द करेक्शंस इन द गैली प्रूफ एंड देन अगेन you can submit and it will be published online and all. Next. There are some tips. Editor and reviewers are looking for original and innovative research that will add to the field of study, and therefore key factors are. What are those key factors? सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ कि editor and reviewer जो है, आपको कभी भी आपने अगर repetitive work किया होगा तो आप एडिटर ही खुद आपके पेपर पब्लिक वापस भेज देगा। इसलिए दे आर ऑलवेज गोइंग टू सी व्हाट काइंड ऑफ नॉवेल्टी यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ सोशल रेलेवेंस इट हैज, वेदर यू हैव गॉट, मैंने जैसे बताया 3 पैरामीटर रिव्यू पहले एडिटर ही चेक करेगा, रिव्यूअर भी उसी 3 पैरामीटर को मेटिकुलसली देखेगा। नाउ फॉर रिसर्च बेस्ड पेपर एंश्योर दैट यू हैव इनफ नंबर्स जस्टिफाइड साउंड स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन। सो व्हेनेवर यू आर सेंडिंग लाइक रिसर्च बेस्ड पेपर, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी इंक्रीमेंटल नंबर आप क्लेम कर रहे हो, दैट इंक्रीमेंटल नंबर शुड जस्टिफाई दैट व्हाट यू आर डूइंग। जो भी आपने जैसे कि पिटफॉल्स आइडेंटिफाई किए, एंड यू मस्ट आइडेंटिफाई सम नंबर्स, वो नंबर के आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप आगे बढ़े, अदरवाइज आपका पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा। For larger study, it may be better to produce one important research paper rather than number of average incremental paper. मतलब मान लो आप अगर मान लो बड़े सीनियर प्रोफेसर हो, तो सीनियर प्रोफेसर बहुत बार क्या करते हैं कि they try to publish as many paper as they can. तो क्या होगा, अगर मान लो एक साल में आप अगर 15-20 पेपर पब्लिश करने की कोशिश करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी सबस्टैंडर्ड। आप सबस्टैंडर्ड जर्नल में जाओगे, तो बेटर वे आप 2-4 पेपर ही करिए, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए, सो दैट यू विल बी एबल टू पब्लिश योर डेटा इन गुड रेप्यूटेड जर्नल। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, दिस इज फाइनल एडवाइस। रीराइट मींस व्हाट?
you have to draft and draft. मतलब पहला ड्राफ्ट बनाइए, आप फिर से उसको चेक करिए, you will come across many mistakes. दूसरा ड्राफ्ट बनाइए, देखिए इसलिए rewrite, proofread, check all the numbers for accuracy. मतलब आपको बार बार लिखना है, बार बार चेक करना है, और आपके जो भी नंबर्स आपने दिया, ensure that you have not committed any mistake, because one number here and there will be responsible for rejecting your papers, and therefore you have to be very careful. Next please. In summary, honest, committed and focused efforts are required for drafting scientific manuscript. You must have seen now. आपको मतलब you need to be very honest. ब्लफ करके आप डेटा अगर तैयार करोगे, आपका पेपर पब्लिश नहीं होगा, कहीं ना कहीं से आपको पकड़ा जाएगा. You need to be very committed and focused, क्योंकि ये काम करना इम्पोर्टेंट नहीं है. एक तो you for while doing lab, like for doing experiment, interpretation of data, analysis of data, drafting manuscript, similarly doing literature. I mean, आप अगर सर्वे कर रहे होंगे, आपका रिसर्च अगर सर्वे बेस है, तो you need to be very genuine in survey base also. बहुत बार हमने देखा कि सर्वे भी प्रॉपर नहीं होता है, तो you need to be genuine in survey base. Whatever data आपके पास है उसका प्रॉपरली एनालिसिस करिए. आप अगर फोकस हो, कमिटेड हो, तो डेफिनेटली आपका मैनुस्क्रिप्ट का स्तर बढ़ेगा. So thoughtfully drafted scientific manuscript will always lead to a quality document. मतलब आपने अगर carefully systematically a manuscript draft किया होगा, तो that will definitely lead to quality document, and which will have novelty as well as definitely social relevance. And if you are having novelty, social relevance, and if you are having your own credibility, I'm sure your data will be definitely published. Next slide please. And at the end, I'm going to end my presentation with the wonderful quotation of Steve Jobs. Great things are never done by one person. They are done by team of the people. So similarly in research also, if you are working alone, even for doing experiment and drafting manuscript, I'm sure it will take days together, months together, and still quality is not going to be good. But if you are doing collaboratively, as I mentioned earlier, as far as English drafting is concerned, you can take help of your colleague. Moreover, for doing experiment also, for interpretation of data also, you can take help of your colleague, your fellow colleague, your senior colleague, your junior colleague. And similarly for drafting also, once you prepare first draft, you can ask your colleague to have the review, to review it, so that he will be critically going through that, giving you some inputs, valuable input, and you will be incorporating those input, and you will be able to prepare a wonderful, impactful manuscript. And therefore, teamwork is always important. With this quotation, I would like to stop here, and I would like to thank you all. I'm extremely sorry, my friend. Today's